business uh, where I'm supplying the educational items to the government organizations. Um, and I belong from Jaipur location, and I have joined this meeting to know about if like what is the scope of the handloom items, uh, like how can I export it, what would be the documentation, how like I can achieve my objectives. Thanks a lot. Welcome here. Chalo, next. Sir, please unmute yourself. Yeah. Madam, can I give my introduction? Yes, we can. Yes, myself, I am Amit Padgiri. I am attending this webinar from Guwahati, Assam. I'm basically into this silk sector, this Eri and Muga silk. So I wanted to attend this seminar because I wanted to know if there is any prospect for my products in Iranian market and all. So that's why I attended this webinar. Okay, that's great. Thank you, madam, for giving me this opportunity. Yeah, sure. Next. Hello. Hello, fast. Hello, I am Ashwin Poli, madam. Yes, tell us. I am from Kerala. So I am very interested in exporting, but I love to doing export banana because in Kerala we get a lot of banana. So I am trying to export banana. Okay, that's good. Chalo, next. अरे चलो फास्ट, सबको देना है, इतना तो पता है ना, तो वन बाय वन जल्दी करो ताकि हम सेशन चालू करें. हेलो मैम. यस सर. हाँ बोलो हर्षद. मेरा नाम हर्षद पटेल है. मैं टेम्पुर सोलापुर से बिलोंग करता हूँ और अभी फिलहाल बनाना का सप्लाई करता हूँ एक्सपोर्टर को. कैवेंडिश बनाना G9 क्वालिटी का एक्सपोर्टर को सप्लाई करता हूँ और खुद का करना चाहता हूँ. मैं खुद एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और हमारे इधर से 90% बनाना ईरान की रह जाता है. हाँ चलो नेक्स्ट. हेलो. हाँ यस सर. Myself Nilesh Bhakta, looking for export the commodities like pulses, basmati rice, onion. I have listed 9 products, out of which I am eager to export these 3 products. Spices also, red chili powder. Currently doing job, but very soon I have to quit job and go ahead with exports and with KDS Academy only. Chalo next. Why I am asking you all, because if I know your product, then I can guide you accordingly that what is the scope in the Iran and how you can develop that trade with Iran. But if I don't know, I will like talk generic, and that is not useful to you all. Right? Okay, tell me. Who left for the introduction? Yeah, Samsung SMG996B. Madam, can you hear me? Yes, I can. Yes. Ma'am, myself, Sadat Lakhani from Aurangabad, Lakhani Trading. We met in Aurangabad seminar. I was been in Kurdistan region of Iraq. I told you before, and I know I told you that I have some relations and some friends there in Iran. I want to import some products from there so that I am connected with you for this session. What products you told? I want to import some products from there. Import? You want to import that? Yes. Okay, good. Chalo, next. I think Akalpita. It's okay, no issues. चलो वो जब आने connect होंगे तब देख लेंगे. So okay, let's start the things. Before starting session, just I want to tell you all, like all of you, like be interactive first, क्योंकि जितना हम interaction करेंगे उतना आपको ज्यादा clarity होगी. नहीं तो वन वे सेशन तो ऐसे 3 घंटे भी दूंगी तो भी आप बोर होने जाने वाले और सो जाओगे शायद, क्योंकि टाइम भी पता नहीं 10 बजे तक हम कितना जगेंगे या कितना होगा. So that is why just be active, be interactive. Whatever your doubts, you can either raise your hand or you can ask me directly or you can comment in the chat box and we can like take it one by one. Okay,
So we will develop the scope. 3 घंटे that is actually मैं कहूंगी that is too much or that is not like too high, या फिर ज्यादा नहीं है कि हम 3 घंटे में सारा स्कोप कवर करेंगे, मतलब कवर हो सकता है. It is a big market actually, big potential, big opportunities, but still I will cover everything like to get you overview, to get you idea about that market, that how you can at least start your export or import in that particular market. So you will get like many of the things in between of that. Okay, but still there are might be some of the questions like it will be like after like attending this session आपके मन में आ सकते हैं डाउट्स, क्योंकि ऐसे भी 3 घंटे में सीखोगे तो भी जब भी काम करने लगोगे तो भी बहुत सारे डाउट्स अलग हो सकते हैं, राइट. बट स्टिल वी विल कवर एवरीथिंग. सो आपको मतलब एटलीस्ट उतना तो आइडिया आ सकता है. आई विल शेयर द स्क्रीन. You can see the PPT. Yes, madam. Okay. Yes, ma'am. So this is about Iran. What is the similarity you can see for this flag and Indian flag? Green and white color, ma'am. Yeah, colors are same, right? Green and white color are similar. Yeah, green and white is almost the same. So we are using orange and they are using red. Yes. It is like सेम somehow अगर यहाँ पे भी देखते हो तो अगर यहाँ पे ऑरेंज लिया मतलब हम ऊपर लगाते ये मतलब थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट द इंडियन फ्लैग, वी कैन से लाइक दैट. या एंड अगर मैं इससे ही चालू करूँ आगे जाके तो यस दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रेड आल्सो इन दैट मार्केट. It is same like the India and Iran. We can say like that. So it is about the not only the flag similarity, but it is about the market similarity also, and that is why we can like find the huge scope in that market for the import and for the export also. So I will suggest you, every one of you, that don't look for the one perspective only with that market. Look to the both perspective. How you can export the things to Iran and how you can import things from Iran, and might be that will helpful to you to establish the trade. Because Iran is like, I found that one market. I have traveled more than 7 to 8 countries actually, but I found that one country is like that you can trade bilaterally. Bilateral, got the concept? कुछ समझा या नहीं समझा? नहीं समझा? This is the one of the market I found actually like comparatively जितना भी मैंने मार्केट का स्टडी किया, जितना मतलब मार्केट मतलब मैं ट्रैवल करके आई हूँ, ये मार्केट ऐसा दिखा कि यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, दोनों तरीके से. इट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल ट्रेड. तो अभी जो भी वर्डिंग में यूज कर रही हूँ वो भी मतलब थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि जब भी उस कंट्री को डील करोगे तब ये वर्ड्स यूज करते हैं वो लोग. गवर्नमेंट हो, लाइक कस्टमर हो, सप्लायर्स हो, बायर्स हो, जो भी कुछ हो, तो दीज आर द वर्डिंग दे आर यूजिंग. सो कैन वी डू द लाइक बायलैटरल ट्रेड? अगर कोई कस्टमर आपसे बोलेगा तो वो ये बोलेगा कि कैन वी डू द बायलैटरल ट्रेड. So what is mean by bilateral trade? They will supply you something, you will supply something. It is just a like connection between two of them. It is not one way. Like आप ही सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे और वो इंपोर्ट करेंगे. हो सकता है कि उनके पास भी कुछ प्रोडक्ट होगा कि वो आपको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे. Either you will give some contacts, references that they will supply to them. Otherwise, okay. So this way you can like develop that market very well. And this is one of the similarity between that two market. So for example, अगर मैं और easy करूँ आपके लिए, तो ये हम कह सकते हैं कि like in the terms of एक one sector अगर मैं लेती हूँ, like हम यहाँ से बनाना एक्सपोर्ट करते हैं. So बनाना मेजोरिटी तौर पे बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान को इंडिया से. This is the number 1 market for India to export बनाना. Okay? आज आप जब भी ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो think in the broader way. It might be like हम बनाना की बात कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है. बट आइदर हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इट इज अ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन 2 countries. सो हाउ यू कैन फिट इनटू दैट, वी विल फाइंड द स्कोप इन द लैटर वे. बट एटलीस्ट मतलब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको थोड़ा कंज्यूम करना सीखो, कि शायद हो सकता है बिजनेस को कैसे क्या काम आए पता नहीं है. राइट, इन दैट वे यू कैन टेक दिस थिंग्स. The first thing I have told you like कि बनाना यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, but otherwise they are importing to India, they are exporting to India apples, dates,
pistachio. So these are the products they are exporting to India. So India is big importer for Iran apples, Iran dates, Iran pistachio. This is just one example I am telling you. So we will explore the other sectors also, other products also. But how the bilateral trade is happening, might be you got an idea? कुछ समझा? Yes or no? अरे कुछ तो response तो दो. हाँ या ना? Yes, madam. Yes, madam. yes, ma'am. As I तो understand. जस्ट मैं बता रही हूँ आपको कि हम स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल पार्ट कि वो ट्रेड कैसे करते हैं. और दूसरी बात, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लाइक मैं ये भी कहूंगी, हमेशा कोई भी मार्केट जब भी हम टारगेट में रखते हैं तो वो मार्केट की स्टडी करो. लाइक फॉर एग्जांपल, हमें बदलना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं बदलने वाला. दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. लाइक हम कहेंगे कि नहीं मुझे यही एक्सपोर्ट करना है, अरे लेकिन वो चलेगा नहीं उस मार्केट में, तो आपको वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप. आपको एज पर द मार्केट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ओके आई विल बी फ्लेक्सिबल इनफ कि दैट आई विल शिप दैट प्रोडक्ट. दैट इज पॉसिबल. इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं रिजिड होके स्टक होके मेरे ही प्रोडक्ट में बैठा रहूंगा. इफ वी आर टारगेटिंग टू पर्टिकुलर मार्केट, this is the one important mantra for the international business. If you are targeting to market, then you need to flexible as per the market. Okay. If you are fixed on the product, then you will need to flexible in the market. This is vice versa. Okay. So हम यहाँ पे ईरान का स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ईरान क्या है ये समझना चाहिए, और ईरान को मैं क्या सप्लाई कर सकता हूँ और ईरान से मैं क्या इंपोर्ट कर सकता हूँ. Okay. Or in both way, how we can fit into that market. So let's start. So in the index, what we will see, this is just a few pictures from my Iran trip, like India in Iran. जैसे अगर हमने देखा, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, this is the possibilities actually India and Iran trade में है. अदर कंट्रीज में शायद ये पॉसिबिलिटीज नहीं है उतनी की जितनी फ्रेंडशिप इंडिया एंड ईरान गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. इसीलिए हमारे लिए दिस इज द लाइक ओपन, लाइक मैं कहूँ कि इजी ट्रेड है कि हम जा सकते हैं उसके पे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एंड ईरान गवर्नमेंट दे बोथ आर सपोर्टिव टू ईच अदर टू बी हैपन द ट्रेड. इसीलिए हमारे लिए अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रहा है तो, राइट. एंड आई हैव कनेक्टेड विथ लॉट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ईरान, like how it can be taken further. So that is why this is like some of the glimpse. So what we will see in this layer, like in this session, why Iran, that is first कि मतलब क्यों possibility है ईरान के साथ. Second, ईरान मार्केट का स्कोप क्या है और डिमांड क्या है in all other the sectors and all other the parts. How to start export to Iran, वो हम कैसे करेंगे. Procedures, documentations, banking, because ये कंट्री थोड़ी अलग है और इसका प्रोसीजरल पार्ट, बैंकिंग पार्ट थोड़ा अलग चलता है than other regular export. Market development, how you can do that. How to find buyers in Iran, market working कैसे चलता है, इस मार्केट का काम कैसे चलता है, in the export, in the import also. Iran payment structure कैसे है, how you can secure your payments, challenges and how you can beat that, action and opportunities. Okay, in short overview हम सारा लेंगे, start करने से end करने तक export import कैसे चलेगा, in particular with the Iran. So welcome in the world of possibilities. This is just like, yes, world is the possibilities. Iran is the major possibilities for Indian market. We can develop the trade with that. Why Iran? Now tell me. आपको क्या क्यों लगा कि मुझे ईरान के साथ ट्रेड करना चाहिए? Friendly neighborly country. Sorry? And it is our neighbor country and moreover Yeah, friendly. actually, this is one of the reason. It is neighboring country for us. What else? Why you want to learn about Iran? नहीं, this question is for you all. क्यों लगा ऐसे? चलो बताओ. मैम एक्चुअली वहाँ का जो प्रोडक्ट करना है इम्पोर्ट, वो प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ brick sector. They are making very good bricks with best clay in the world. They have, and the facilities they have for manufacturing the bricks, it's very advanced. So I am targeting that market.
That's good. Yes, और कोई? Madam, that during that entire your this tour to Iran, we saw your head being covered by this headscarf. So actually, from that, madam, I thought maybe this if we can supply them hijabs and all. Made No, of, that is actually mandatory by their law. Mhm. For every woman. It is not about their country, but for the travelers also. Any woman entering in the country, they should cover their head. So hijab, उनके language में hijab बोलते हैं वो. So hijab is compulsory. Yes, yes. हिजाब इज कंपलसरी. मतलब उनके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, बट यस मतलब इतने सारे भी स्ट्रिंजेंट है नहीं है, बट फॉर मी लाइक फॉर वुमेन मतलब इट इज कंपलसरी कि वो सिर पे रखना जरूरी है. मतलब अगर नहीं रखा तो उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है वहां पे. वहाँ पे तो हिजाब हाँ कंपलसरी है. मतलब वो बहुत है वहां पे, इसीलिए मतलब वो मैंडेटरी है. मुझे बाकी सारे लोगों को बताओ कि आप बोलने वाले हो या नहीं. अपन दीपक, अश्विन, मुसाविर, जयंत, गैलेक्सी, अकल्पिता, वन प्लस. Bilateral trade road agreements transport of is also, India with Iran government. Okay. ma'am, road transport is also possible na? By road also we can do export By of Iran. road possibility वैसे नहीं है. नहीं है वैसे possibility. Via Pakistan is available. Pakistan, Turkey, and Iran, they have train route, I think. Lock करूँगी. ओके सो वाई ईरान. मैं बार अरे सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बी इंटरैक्टिव. जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा आपका, और ये ऐसे वन वे चलने के लिए मतलब कोई फायदा नहीं उससे ऐसे, राइट. सो बी इंटरैक्टिव फॉर दैट. वाई ना ईरान. मैंने सिर्फ आपका कहना पूछा कि अगर आप सच में ये सीखना चाहते हो तो क्यों डिसाइड किया आपने कि आपको ईरान करना है. Madam, I think when I read in internet, Iran is the second market. The India is the second market in Iran. China has the highest shareholders in Iran market, and India is the second. So we have big opportunities because they believe us. They believe Indians. I think that's why we are the second shareholders in Iran market. So we have great opportunities. That's great. Yes, और कोई. हर्षद. एक तो पहले मैं सबको क्लियर करती हूँ, ये लेक्चर ये सेशन ऐसा नहीं जैसे हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे ना, कोई आंसर नहीं दिया तो भी चलेगा, शांत बैठो तो भी चलेगा. ये ऐसा लेक्चर नहीं है. हम वी आर हियर फॉर द बिजनेस, और बिजनेस सीखना है तो यस बोथ साइड से अगर इंटरेक्शन उतना होगा उतना आपके लिए फायदेशीर है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 3 घंटे वन वे लेक्चर देने के लिए, बट दैट इज फॉर योर पर्पस, योर बेनिफिट कि लाइक जितना हम इंटरेक्शन करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होने वाला है. ओके Yes. चलो वाई ईरान. देयर आर सम रीजंस आई हैव पॉइंटेड आउट. वैसे बहुत सारे रीजंस और भी हो सकते हैं, और भी है एक्चुअली. वैसे नियर टू इंडिया, इट इज नेबरिंग कंट्री फॉर अस. मतलब दैन अदर कंट्रीज इट इज वेरी नियर, मतलब हम इजीली सप्लाई कर सकते हैं उनको. 5 to 7 days सी ट्रांजिट टाइम, मतलब ये डिपेंड है, ट्रांसशिपमेंट है, डायरेक्ट वेसल है, इनडायरेक्ट वेसल है, इसके ऊपर भी डिपेंड है कि कितना ट्रांजिट टाइम लग सकता है. अनटैप मार्केट है अभी तक के लिए टू एंटर. इज इट यस और नो? Yes. इट इज अनटैप मार्केट टू एंटर. व्हाई? क्योंकि अभी तक क्या है ना कि किसी को भी पूछो, मतलब इन मार्केट ऑल्सो, इन इंडियन मार्केट ऑल्सो, अगर किसी को भी पूछो आप, तो भी लोग बातें क्या करते हैं, हम दुबई को सप्लाई करना चाहते हैं, हम यूरोप को जाना चाहते हैं, यूएसए को करते हैं, एशियन मार्केट करना है या फिर यूरोपियन मार्केट करना है. किसी से भी रैंडमली भी जनरली बताओ कि कभी सुना है कि मुझे ईरान एक्सपोर्ट करना है? बहुत कम लोग बातें करते हैं कि मुझे ईरान को जाना है. नहीं तो मेजोरिटी पीपल ईरान का नाम भी नहीं लेते, या फिर उनको शायद पता भी नहीं होगा उसके लिए. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अनटैप मार्केट. व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज बिजनेस को अगर लॉजिकली देखा जाए तो आइदर हो सकता है कि एक तो आप टॉप मार्केट में एंट्री करोगे जहां पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है. एंट्री इजी हो सकती है लेकिन कॉम्पिटिशन वहां पे है. आइदर आप ऐसे मार्केट में जाओगे जहां पे ज्यादा लोग नहीं गए हैं,
So there is a chance, there is a possibility in the market कि आप वहां पे जाओगे तो it is better for you, क्योंकि वहां पे अभी कंपटीशन उतनी नहीं है, so आप इजीली एंटर कर सकते हो वहां पे। और जब भी आप आगे जाओगे, इसका मतलब जब भी वो मार्केट बढ़ेगा तो यू आर ऑलरेडी द नंबर 1 प्लेयर देयर। सो इसीलिए देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि यू कैन टैप द अनटैप मार्केट आल्सो, एंड दीज आर द बिजनेस स्ट्रेटजीज एक्चुअली। सो ईरान इज लाइक दैट। सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया ईरान, यस डेफिनेटली। मेनी प्रोडक्ट्स, मेनी लाइक हैबिट्स या मेनी जो भी चीजें हैं हम दोनों एक साथ शेयर करते हैं, मतलब एज अ कंट्री इंडिया एंड ईरान। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे एक्सचेंज हो सकते हैं। सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे उनके यहाँ पे एप्पल आता है, हमारे पे नहीं आता तो हम उनका इंपोर्ट किया, बनाना हमारे यहाँ पे आता है, वो हमने उनको एक्सपोर्ट किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सिमिलैरिटीज में जाती है। डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सम प्रोडक्ट्स, दैट बोथ कंट्रीज इंडिया एंड ईरान वी आर डिपेंड ऑन लाइक ईच अदर फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। उसमें अगर मैं जनरली स्पेसिफिकली कहूँ, पेट्रोलियम उनके यहाँ पे ज्यादा है, बिटमन उनके यहाँ पे ज्यादा है। बिटमन पता है? या बिटमन इन द सेंस हिंदी में पता नहीं, डांबर हम मराठी में बोलते हैं। हाँ राइट। तो वो जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, रोड में यूज होता है, बिल्डिंग मतलब ऐसे जहाँ पे यूज होता है। सो बिटमन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ईरान से इंडिया को किया जाता है। इंडिया इंपोर्ट करता है बिटमन को और ईरान एक्सपोर्ट करता है। सो ये हुआ ना कि हम उनके यहाँ पे डिपेंड है। पेट्रोलियम के लिए हम, पेट्रोकेमिकल्स के लिए हम उसके ऊपर डिपेंड है। क्रूड ऑयल उनके पास ज्यादा है, सो ऑयल के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड है। और वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो राइस वो मतलब ग्रो करते ही नहीं है। सो राइस के लिए इंडिया के ऊपर वो डिपेंड है। स्पाइसेस के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंड है, राइट। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। पेपर हमारे यहाँ से जाता है, टेक्सटाइल जाता है, यार्न फैब्रिक जाता है, स्टील जाता है, बिल्डिंग मटेरियल जाता है। So there are a lot of actually products like India is exporting and Iran is also exporting to India. So that is why depend on each other for some and other products. Top market for India is agri and medical export. This is one of the part. Iran अगर मैं कहूँ specially, this is the one of the market for the agri and medical. Why this is two markets only? अगर इसको मैं और थोड़ा bifurcate करूँ, Iran is actually sanctioned country. ये तो पता है? Sanction is one. राइट। ईरान इज एक्चुअली द सैंक्शन कंट्री। हाँ, यूएसए के सैंक्शन है ईरान के ऊपर, यूएस गवर्नमेंट के सैंक्शंस है। और यूएस गवर्नमेंट के सैंक्शन होने के कारण ईरान कंट्री डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती। उनके पास यूएस डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ईरान एंड यूएसए दोनों मतलब एक दूसरे के पास बात झगड़ा करते हैं। तो इनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है डॉलर। और इसीलिए क्या हुआ कि ईरान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ आईएनआर में डील करता है। जो भी ट्रेड होता है रुपीज में ही होता है, इंडियन रुपीज में होता है, बाकी दूसरे रुपीज में भी नहीं। इंडियन रुपीज में ही सिर्फ ईरान हमारे साथ डील कर सकता है। जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करेगा वो इंडियन रुपीज में ही जाएगा, जो भी ईरान से इंपोर्ट होगा वो भी इंडियन रुपीज में ही जाएगा। सो जो मैंने बोला एग्री एंड मेडिकल के लिए जो दो स्कोप हमने देखे, सो व्हाई इट इज दैट, बिकॉज ऑफ अगर यूएस के सैंक्शन से तो ईरान को कोई सप्लाई नहीं करेगा। अगर यूएस गवर्नमेंट सैंक्शन देता है इसका मतलब कोई कंट्री उसको सप्लाई नहीं करेगी। यूएस यूरोप तो सप्लाई नहीं करेगा उनको, राइट। तो फिर कंट्री चलेगी कैसी? और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ जो सैंक्शन होते हुए भी क्या मतलब डील किया है कि ईरान को इंडिया एंड ईरान दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एग्री, मतलब फूड प्रोडक्ट्स, खाने की चीजें एंड मेडिसिन, जो मैंडेटरी चीजें है ना एज ए ह्यूमन नीड्स है, मेडिकल एंड फूड, ये ह्यूमन नीड्स है। तो उस कंट्री को इंडिया सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब फूड के रिलेटेड, एंड इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, एंड अदर देन दैट इन द ह्यूमैनिटरी नीड्स। 3 चीजें आप उनको भेज सकते हो विदाउट एनी बैरियर। 3 सेक्टर की चीजें आप उनको भेज सकते हो। 1 इज एग्री फूड, सेकंड इज मेडिकल मेडिसिन, मतलब उनके मेडिकल एंड मेडिसिन रिलेटेड जो भी आता है, फार्मा में, आयुर्वेद में, यूनानी में जो भी आता है, इन द टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सॉफ्टवेयर, जो भी आप कहो मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो भी आता है, यू कैन सप्लाई दे। एंड द थर्ड इज ह्यूमैनिटरी नीड्स, जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स कमिंग यू कैन सप्लाई दे। और इंडिया एंड ईरान एक्सचेंज बिटवीन लाइक ईच अदर। Iran also, madam. हाँ बोलो। Yeah, Iran also import tea from India.
Iran also import tea from India. Tea. tea. Yeah, tea is also there. Black tea is very much importing. Black tea India से बहुत बड़े मात्रा में जाता है उनके पास. So I will show you the product also कि India क्या export करता है, India का import करता है. So these already statistics I have taken. So I will show you that also. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो. आप अभी बोले थे कि इंडियन रुपीज में ट्रेड होता है, तो बीआरसी कैसे क्लोज होती है मैम? BRC it is coming in Indian rupees only क्योंकि गवर्नमेंट ने ही वो दिया है ना, आरबीआई का ही रूल है ये कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड होगा वो INR में ही होगा. इसका मतलब बैंक को ही रिस्ट्रिक्शन, बैंक को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है ये कि ईरान का जो पेमेंट आएगा INR में आएगा, तो शिपिंग बिल वो INR में ही बना जाएगा. FOB डॉलर में कुछ भी नहीं बनेगा. मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पे करेंसी INR ही होगी. तो शिपिंग बिल अगर INR में बनता है तो पेमेंट भी INR में आएगा. इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्लोज हुआ वहां पे. तो BRC जो भी निकलेगी वो भी INR में ही निकलेगी. पेमेंट मतलब मैडम कहाँ से आना चाहिए मैडम? ईरान से आना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए पेमेंट? मतलब ईरान बायर से? ने बैंक में देना चाहिए? क्वेश्चन रिपीट करो. जो बायर है अपना, उसने कौन से बैंक अकाउंट में से भेजना चाहिए? मतलब ईरान के हाँ, अकाउंट वो बैंक? हम आगे देखेंगे. बैंकिंग आई विल अपडेट यू कि वो कैसे ट्रांजैक्शन चलता है वो मैं बताऊंगी. मतलब वो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे वहां पे. ठीक है. ठीक. ओके. हाँ. एक्सक्यूज हाँ मी यस बोलिए सर. मैम, अगर ये जो तीनों पॉइंट्स आपने बताए कि इसके अलावा अगर कुछ इंपोर्ट करना है या हाँ, वो एक्सपोर्ट भी हम करना है तो उसका देखेंगे. क्या तरीका वो है? भी हम देखेंगे. यस देयर आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, बट जस्ट आई एम स्टार्टिंग विथ यू लाइक कि कौन सा उस मार्केट ने इंडिया एंड ईरान गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेंस दिया है कि विद द सैंक्शंस आल्सो वी कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन दिस 3 सेक्टर्स इन द सैंक्शंस. ओके. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया ईरान ट्रेड करता है एक दूसरे के साथ. बट हाउ दैट वी विल सी नेक्स्ट. वो कैसे ट्रेड होता है वो हम आगे देखेंगे. यहाँ तक क्लियर? ओके. सो टॉप मार्केट जैसे मैंने अभी बताया, इंडिया ईरान बूस्टिंग द ट्रेड. दोनों गवर्नमेंट मिलके बहुत सारे बूस्ट कर रहे हैं ट्रेड को. इसीलिए तो अभी जो भी मैंने ट्रैवल किया ईरान को, दैट इज लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट डेलीगेशन. ये गवर्नमेंट ने डेलीगेशन लेके गए थे ईरान को. इंडियन गवर्नमेंट का ये डेलीगेशन था एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट डेलीगेशन. इसका मतलब क्या है कि दो गवर्नमेंट एक दूसरे को ट्रेड को बूस्ट कर रहे हैं. सो इट इज गुड साइन फॉर अस. ओके. वाई ईरान? बाय लोकेशन वाइज देखा जाए, अगर जोग्राफिकल हम सर्वे करें तो ईरान इज द बिगेस्ट मार्केट एंड स्कोप ऑफ द मार्केट इज वाई बिकॉज बाय लैंड अगर देखा जाए तो लैंड बॉर्डर्स में वो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को, अर्मेनिया को, अजरबैजान को, इराक को, पाकिस्तान, टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान. मतलब ये बाय लैंड भी ट्रेवल करता है. सो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे कुछ चीजें ईरान को और अगर वहां से मतलब स्कोप क्रिएट होता है कि टर्की का, तो ये बाय लैंड से भी ईरान टू टर्की जा सकता है. लाइक दैट. सो जोग्राफिकल भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो हमेशा कंट्री वाइज, ताकि आपको स्कोप का पता चले. बाय सी अगर देखा जाए तो ईरान की फ्लेक्सिबिलिटी है. बहरीन को एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट भी करता है. कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी, यूनाइटेड अरब, ये बाय सी उनका बहुत अच्छा जाता है. कुछ समझा यहाँ पे? Yes. ओके. मुझे अभी बताओ कि अगर ये मैंने जो दिखाया लोकेशन वाइज कनेक्टिविटी जो है, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? व्हाट इज द स्कोप? यहाँ से an Iranian buyer man import from India, then again export to countries like, as you said, Bahrain, Yes, Qatar. definitely. अगर उनको अच्छी कनेक्टिविटी है बाय लैंड से इन कंट्रीज को एंड बाय सी से उस कंट्री को, तो डेफिनेटली द स्कोप इज देयर दैट दे विल इंपोर्ट फ्रॉम यू एंड दे विल एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. यस और नो? Yes, yes, yes. Yes, ma'am. क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, वो ईरान से दुबई के लिए 1 डे में कार्गो आता है. ओनली 1 डे. इसका मतलब समझ सकता है कि ट्रेड कितना इजी है उनके यहाँ से यहाँ पे. 1 day by sea. 1 डे बाय सी. या सो इसका मतलब ही क्या है कि मतलब ट्रेड कितना इजी चल रहा है उनके यहाँ पे. एक दिन में कार्गो अगर वहां पे पहुंचता है, सो दैट मीन्स दैट द स्कोप इज हायर नाउ. सो जितना वो इंडिया को नहीं भेजते होंगे उतना वो गल्फ कंट्रीज को भेजते. यस. सो बहुत सारे लोग है ना कि रूटिंग ज्यादा होता है.
ट्रेड का रूटिंग ज्यादा किया जाता है, इसीलिए आपका स्कोप ज्यादा है। इसीलिए मतलब थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव डेवलप करो कि कंट्री को कैसे टारगेट किया जा सकता है और कैसे स्कोप हो सकता है। ओके ओके, ये दुबई नहीं है एक्चुअली। जस्ट ओके, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सैंक्शन स्कोप अभी है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये थ्रेट्स भी है, दोनों है। सैंक्शन होने के कारण उस कंट्री के साथ जो भी ट्रेड हो रहा है दैट इज डिफिकल्टी भी है, लेकिन सैंक्शन होने के कारण इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटी हुई, इसके वजह से आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती है, तो स्कोप आपका बढ़ गया बिकॉज ऑफ सैंक्शन ओनली। और सैंक्शन होने के कारण एक और बात है, जो भी अभी मैंने वहां पे गवर्नमेंट के साथ भी मतलब डिस्कशंस किए, तो पॉसिबिलिटीज है कि ईरान के साथ यूएस एंड ईरान के जो भी सैंक्शंस के हैं वो उनके लिए मतलब एफर्ट चल रहे गवर्नमेंट के कि वो सैंक्शंस कैसे हटा दिए जाएंगे, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। सो उन्होंने एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी बताई हमें कि लाइक अगर अभी कंट्री सैंक्शन में है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन में है, जो भी लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और समझ के चलो कि नेक्स्ट ईयर सैंक्शन हट गया, कंसिडर करके चलो कि नेक्स्ट ईयर अगर सैंक्शन निकल गया उनका, तो ईरान इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर एवरी कंट्री। समझ रहे हैं? ये कुछ समझ रहा है या ऊपर से जा रहे हैं? समझ रहे हैं। अगर सैंक्शन हट गया उनका, तो ईरान इज द नंबर 1 मार्केट फॉर एवरी कंट्री। तो क्या लगता है आपको, चाइना शांत बैठेगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा मैडम। हाँ, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दैट मार्केट, और इसीलिए आज अभी रेस्ट्रिक्शंस है तो बहुत कम लोग वहां पे, राइट? रेस्ट्रिक्शन है तो कम लोग है, लेकिन अगर हम पहले जाएंगे वहां पे, अभी अगर हम एंट्री करेंगे, तो इसका मतलब स्कोप हमारे लिए ज्यादा है। दैट इज व्हाई दिस इज द राइट टाइम कि अभी उनका रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, इसीलिए दो गवर्नमेंट मिलके बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि हम कैसे मतलब बूस्ट करें। जो लोग एटलीस्ट आगे जा रहे, कुछ तो हिम्मत रख के आगे चल रहे, रिस्क ले रहे, तो हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए दोनों गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं, राइट? अगर सब भी ओपन हो गया, मतलब समझ के चलो दुबई का एग्जांपल लो, अभी दुबई नॉर्मल है ना, कोई हेल्प करता है हमें वहां पे? ना उनका गवर्नमेंट ना हमारा गवर्नमेंट, कोई करता है? नहीं करता। मार्केट इज ओपन फॉर एवरीवन, और इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वहां पे सस्टेन होना दैट इज द चैलेंज। एंट्री करना वो चैलेंज नहीं है, वहां पे सस्टेन होना दुबई में दैट इज द मेजर चैलेंज। अभी ईरान में क्या है, एंट्री करना इज द चैलेंज, मतलब ये वहां पे है। नाउ एंट्री बैरियर आर देयर, सो अगर आप एंट्री करोगे तो यस डेफिनेटली यू आर द वन। और इसका अगर एग्जांपल में दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि सच में एंट्री बैरियर है और जो एंट्री करके आगे निकल गया है उसका अभी का स्कोप क्या है। जस्ट वन इंडियन पर्सन आई मेट देयर इन ईरान, सो दे आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, और उन्होंने वहां से मुझे कांटेक्ट किया था, नाउ यू आर ट्रैवलिंग इन ईरान सो आई वांट टू मीट यू। सो वैसे उनका कांटेक्ट हुआ था, सो वी हैव डन वन मीटिंग विद देम, एंड दिस इज द वन ऑफ द पर्सन, ही इज पंजाबी, मतलब वो पंजाब से थे, ठीक है? और उनका बिजनेस था, दे आर लाइक टॉप 3 कंपनी जो ईरान में है, उनमें से वन ऑफ देम। अभी ईरान में जो टॉप 3 कंपनीज है उसमें वन ऑफ देम, मतलब वो वन ऑफ देम, 3 कंपनीज में एक बड़ी कंपनी है वो, ओके? उनका चावल का बहुत बड़ा ब्रांड है ईरान में, राइस का बहुत बड़ा ब्रांड है। और उन्होंने उनकी स्टोरी अगर बताई मुझे कि वो पहले अफ्रीका में काम करते थे, बिफोर 6 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स वो अफ्रीका में थे, और वहां से मतलब उनको पता चला ईरान की पॉसिबिलिटीज कितनी अच्छी है, स्कोप कितना बड़ा है, सो दे हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम अफ्रीका टू ईरान। सो ईरान का मार्केट उन्होंने चेक किया, ईरान में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये मैं बात करी 5-6 साल पहले वाली, अभी की नहीं, ठीक है? और वहां पे उन्होंने मतलब वो सारी चीजें चेक की। नाउ दे हैव फाइंड आउट द स्कोप, लाइक कि राइस का इम्पोर्ट ईरान में ज्यादा है बिकॉज डिमांड इज हाई, सो क्यों ना हम राइस का इम्पोर्ट करें। तो उन्होंने राइस का इम्पोर्ट चालू किया, एंड वाइस वर्सा व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग टू इंडिया। सो इंडिया से अभी वो राइस लेते हैं, बासमती चावल, वो वहां से इम्पोर्ट किया जाता है, एंड व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग टू इंडिया, बिटमन, ओके? सो ये क्रॉस ट्रेड वो अभी चला रहे। सो इंडिया का कोई बंदा है कि जो उनसे बिटमन इम्पोर्ट करता है, और इंडिया का कोई दूसरा बंदा है कि जो उनको राइस एक्सपोर्ट करता है।
अभी समझा क्रॉस ट्रेड कैसे हुआ? एंड इफ यू इमेजिन द स्कोप, नाउ आई हैव आस्क्ड देम द वॉल्यूम एंड अदर कैपेसिटीज एंड ऑल. बिटमन जो भी आता है वो शिप में आता है, ना कि कंटेनर में आता है, वेसल में आता है. सो आपको वॉल्यूम पता चला होगा. जो बिटमन आता है वो वेसल में आता है, कंटेनर में नहीं आता. सो इतना बड़ा ट्रेड वो बिटमन का होता है. और रही बात राइस की, दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया इन 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक ईयर में 4000 कंटेनर एवरेज. समझा? दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया 4000 कंटेनर. तो आप अभी बताओ कि दे आर द टॉप 3, वन ऑफ द टॉप 3. तो स्कोप क्या हुआ होगा? और वो बंदा 4-5 सालों से वहां पे जाके बैठा है, तो स्कोप क्या बढ़ा, मतलब सोच के चलो. सो दिस इज द एंट्री पॉइंट. इसलिए मैंने कहा ना कि दुबई में कोई 4000 कंटेनर करने के लिए उसको 10 साल लगेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट. वहां पे किसी को पहले चांस नहीं मिलने वाला, और यहाँ पे एस्टेब्लिश ही नहीं है. तो हम अगर जाएंगे तो हमें एस्टेब्लिशमेंट के चांसेस ज्यादा है. वी कैन, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे लिए, लेकिन यस वी कैन एस्टेब्लिश दैट. तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है. जस्ट वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू. 4000 कंटेनर वो बासमती राइस इंडिया से इंपोर्ट करते हैं. सी द स्कोप ऑफ द मार्केट. और उसके आगे वाली बात मैं बताऊं मैं, अगर ईरान इंडिया से जो इंपोर्ट करता है, दे आर री एक्सपोर्टिंग टू अदर नेबरिंग कंट्रीज. उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज है नियरेस्ट उनके लिए, दे आर री एक्सपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज. एंड इट इज हैपनिंग इन एवरी सेक्टर इन ईरान, जो भी ईरान इंपोर्ट करता है. इसीलिए मैंने बोला कि नेबरिंग कंट्रीज का भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता करके चलो, कि ताकि आपको स्कोप पता चले. राइट? ईरान इज इंपोर्टिंग शुगर फ्रॉम इंडिया फॉर द री एक्सपोर्ट टू उज्बेकिस्तान. सो ईरान में तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, लेकिन दे आर एक्सपोर्टिंग टू अदर मार्केट ऑल्सो. सो दैट इज द स्कोप. ओके? एंड यस, इट इज अ रिच कंट्री. अगर सच में बताया जाए, इट इज सच में रिच कंट्री है. मतलब जितना मैंने सुना था ईरान के बारे में बिफोर गोइंग, एंड जो मैं मतलब अभी देख के आई हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट. टोटली डिफरेंट. आज आपको क्या लगता है ईरान कैसे होगा? आपने देखा नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है ईरान कैसे होगा, जो हमने सुना है उसके बेस पे? बोलो. opportunity country. ओके. Culturally developed. क्या क्या? Culturally, they have developed. We can say people are broad-minded and all. एक्चुअली ईरान मतलब इस्लामिक नहीं है, दे आर पर्शियन. Yes. ओके, दे आर पर्शियन, वो पर्शियन कंट्री है. वो उनकी लैंग्वेज भी पर्शियन है, मतलब वो सारा पर्शियन, वो पर्शियन फॉलो करते हैं. उसके बाद ईरान जैसे है ना कि बिफोर गोइंग देयर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशन चलते हैं उस कंट्री के बारे में. एक तो हमने वॉर के बहुत सारे किस्से सुने हैं, टेररिज्म के बहुत सारे सुने हैं, सैंक्शन है यूएस के, ये वो ऐसे. अगर न्यूज भी देखो, कभी भी गूगल पे भी डालो, तो भी ऐसी ही बातें आपको सुनाई देगी. इसका मतलब हमने पहले ही तय किया कि कंट्री ऐसी ही है. लेकिन जब भी मैंने वहां पे ट्रैवल किया तो देखा कि इट इज लाइक मिनी यूरोप. इट इज लाइक मिनी यूरोप. मतलब जैसे कि हम यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं. लोग भी वैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा, उनकी मतलब जो भी कुछ चीजें चलती है वो भी वैसी है. वो इतने डेवलप है ऑलरेडी, और वो बहुत रिच है, क्योंकि उनके पास सब है. अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो $1 में 10 लीटर पेट्रोल आता है. Oh, 10 लीटर पेट्रोल. मतलब कितना हुआ पर लीटर? 7 रुपए 8 रुपए ऐसा कुछ. 7 रुपए 8 रुपए. हाँ, तो रिचनेस पता चल सकता है उनका फिर, है ना. उसके लिए हम 120 130 वहां पे, यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं. सो वो $1 में 10 लीटर पेट्रोल देते. तो इसका मतलब उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल एंड ऑयल की कितनी है. देन दैट इज व्हाई द कंट्री इज वेरी रिच. एवरी पर्सन इज रिच देयर. तो उनको कुछ पड़ी नहीं है वैसे. समझा? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि उनको कुछ पड़े नहीं है. मतलब इसका मतलब ये भी समझ के चलो कि वो रिच है. इसका मतलब वो पैसे के मामले में ऐसे नहीं है ना कि पैसा ही नहीं है तो क्या दे आपको. कुछ समझा? ऐसे नहीं है उनके पास, पैसे है ऑलरेडी. तो इसीलिए वो मतलब आपको देने के लिए भी तैयार है, अगर आप उनके साथ उतना रिलेशन करोगे, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है वैसे गुड्स अगर वो सप्लाई करोगे, सो दे आर पेइंग यू.
क्योंकि ऐसे नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे है उनके पास। पता चला स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है फिर, उनके पास, उनको डिमांड है, मतलब उनको नीड है, उनको वो प्रोडक्ट कोई भी कंट्री नहीं दे रहा है, इसका मतलब उनको सप्लाई चाहिए। यस और नो? बिकॉज ऑफ सैंक्शंस नो वन, बहुत सारे कंट्रीज की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली ईरान को सप्लाई कर सकते बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। इसीलिए इंडिया के लिए पॉसिबिलिटी ओपन की है, क्योंकि इंडिया ईरान कंट्री का मतलब एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है। तीसरी बात, उनके पास, वो रिच कंट्री है तो उनके पास पैसा है। अभी समझ के चलो, अगर मुझे डिमांड है, मुझे नीड है उस प्रोडक्ट की और मुझे नहीं मिल रहा है और आप देने के लिए तैयार हो, तो यस आई विल परचेज फ्रॉम यू। और अगर मैंने आपके साथ फ्रॉड किया तो आप दूसरी बार आओगे मेरे पास? नहीं आ सकते। इसका मतलब वाइस वर्सा रिलेशन हो गया दुबई एंड ईरान का, बराबर ना? मतलब मुझे बस इतना कहना है कि जैसे हम दुबई को बोलते हैं कि सारे फ्रॉड ही बैठे, क्योंकि हमने इतने बहुत सारे एग्जांपल सुने उसके बारे में, राइट? लेकिन ईरान के लिए मैं कहूंगी कि वैसे कुछ भी नहीं, कि मार्केट ऐसा ही है। यस, हर मार्केट में कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट होता है, इंडिया में भी होता है, ऐसे कुछ नहीं कि दुबई में ही होता है ऐसे, राइट? इंडिया में भी डिफॉल्ट होता है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ दैट थिंग इज वेरी लो इन ईरान because of the richness of the country, because of the demand in the country, and because of the shortage of the material in the country. इसीलिए उनके मतलब हमारे लिए that the market is best. Okay, so about me, like those who don't know me, in the brief I will tell you that yes, I am exporter, author, importer, trainer and business coach also. 10+ years मैंने इंडस्ट्री में काम किया था, and yes, उसके बाद जब भी मैंने सोचा खुद को कि लाइक यस मुझे बिजनेस करना है, कुछ तो बनना है, लेकिन है ना कि तब जाके ऐसे एक्सक्यूजेस इतने बहुत सारे आए, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था। बट वन फाइन डे आई हैव टेकन एक्शन, आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी आफ्टर 10 years in the corporate industry. I have started my company and this is the transformation you can see. So might be someone knows about that, someone don't know about that. This was me and this is me. This is a difference in me. And they've done this transformation from the last 4 years only. From 2018, ये मतलब ये पिक्चर है up to 2017 का, and this is picture in the 2018. So from that point onwards, बस कहना इतना है कि everything is possible. You can change, you can transform, and you can do the things. जैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि हम नहीं कर सकते, मतलब कहना मुझे उतना ही है। एंड उसके बाद यस, दिस इज माय फर्स्ट कंपनी. I am founder director of Kaushal Food Products. We are exporter, manufacturer in agri, processed food and spices. We are right now exporting to Dubai, Bangladesh, Singapore, Netherlands, Belarus also, and lot of other countries also. Well, plus with that, we are into textile also. We are developing the scope for other products also. And my student base is like lot from the different sectors. So yes, I work on the ground. That is why I can share you with the practical experience only. These are the some pictures. Global Fortune, this is my second company, which you have connected right now. This is into training consultancy for international business. More than 70,000 plus people across Pan India. I have connected, I have trained them, and they are now the family. Global Fortune family is across the Pan India. So I have travel every state of India, like connected with the people. And why I'm telling you, because this is the network. This is the power of community. We can connect, we can grow, we can help each other. Okay. This is my Dubai office. I have opened Dubai office also, and this second year I am running my Dubai company. So why this is helpful to you, I will explain you later. ईरान के ट्रेड में दुबई का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, so we will explain it later also. So coming to the point, ईरान मार्केट स्कोप, क्या क्या मार्केट स्कोप हमारे लिए ईरान में है. ओके, सो ईरान, पहले हम देखते कि ईरान इंपोर्ट क्या करता है. सो उसमें टॉप इंपोर्ट ऑफ ईरान, दिस आर लाइक हर कंट्री के टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं ना. जैसे इंडिया के टॉप प्रोडक्ट में क्या आएगा बताओ. इंडिया के टॉप प्रोडक्ट में क्या आएगा, इंडिया क्या टॉप प्रोडक्ट में इंपोर्ट करेगी. yes, डीजल, पेट्रोल, राइट, पेट्रोलियम इज वन ऑफ द थिंग. क्योंकि इंडिया के पास वो नहीं है, तो इंडिया टॉप में अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंडिया पेट्रोलियम में जाएगी. सेकंड मतलब इंजीनियरिंग में जाएगी, या फिर जो भी ऐसे चीजें हैं कि जो बहुत बड़े तौर पे कंट्री को पहले नीड में आती है, वो पहला इंपोर्ट किया जाएगा. सो इसीलिए हम जब भी स्टैटिस्टिक देखेंगे इंडिया का या अदर कंट्रीज का भी, आपको हमेशा दिखाएगा कि
पावर में हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। देन पेट्रोलियम में ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में शायद हो सकता है। तो ऐसे सेक्टर पहले हाईलाइट होते हैं। तो अगर हम शायद इसमें है कि हम फूड में है, तो वो कभी दिखेगा नहीं टॉप 10 में। अगर डेवलप कंट्री के साथ ट्रेड देखा जाए तो वो कभी टॉप 10 में आपको नहीं आएगा, वो मतलब बाद में आता है, क्योंकि वो नीडेड नहीं है। जो नीडेड है वो पहले आता है। अगर इसी कंसेप्ट को अगर हम ईरान के साथ जोड़े तो आपको समझ सकता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। टॉप 10 में ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट वो ज्यादा लेते हैं, कॉर्न ज्यादा चलता है वहां पे, मतलब कॉर्न एनिमल फीड के लिए भी चलता है, उनके फूड सप्लीमेंट के लिए भी चलता है, प्रोसेस फूड के लिए भी लगता है उनको। दैट इज व्हाई दिस इज द हाईएस्ट इंपोर्ट। राइस ज्यादा लगता है उनको फॉर द इंटरनल कंजम्पशन ऑल्सो एंड फॉर द री एक्सपोर्ट ऑल्सो। सोयाबीन वो ज्यादा लगता है, और वो कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, टर्की से लेते हैं एंड जर्मनी से लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट इंपोर्ट। अभी अगर मैं एक और इनडायरेक्टली बात बताओ, यहाँ पे और अगर आप देखा होगा तो व्हीकल पार्ट से, क्या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पेयर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीडेड है वो डेटा यहाँ पे आया, लेकिन जो ट्रेड सैंक्शन में नहीं है वो ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता है, जो आपको ऐसे अगर गूगल करोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ट्रेड वहां पे हुआ ही नहीं है डायरेक्टली, लेकिन वो कंट्री में गया है, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सो इंडिया एक्सपोर्ट, अगर इंडिया ईरान इंपोर्ट करता है तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है फिर उसको? अगर मैंने अगर ग्राफिकल डेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चलेगा राइस सबसे ज्यादा है। दिस वैल्यूज आर इन करोड़ रुपीज, 4441 करोड़ रुपीज का राइस सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसको, ईरान को। देन शुगर जाता है ज्यादा, ब्लैक टी का ज्यादा जाता है, केन शुगर ज्यादा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल्स में वो ज्यादा जाते हैं, मेडिसिन एंड फूड प्रिपरेशंस। मतलब अगर मैं वन बाय वन, दीज आर द टॉप सेक्टर्स आई एम जस्ट आइडेंटिफाइड हियर। अगेन अगर देखो तो बनाना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेड, हायर इंपोर्ट किया जाता है। मिक्सचर्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, मतलब फूड में इंग्रेडिएंट्स हो, कलर्स हो, केमिकल्स हो, ये जो भी रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री जो आता है, इट इज नॉट अबाउट द फूड ओनली, रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री। तो अगर मैं फूड की बातें करूँ तो फूड पैकेजिंग भी आएगा, फूड मशीनरीज भी आएंगे, फूड इंग्रेडिएंट्स भी आएंगे, फूड केमिकल्स भी आएंगे। सो थिंकिंग ऐसे मत करो कि फूड जाता है इसका मतलब सिर्फ फूड ही जाता है, रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री यू कैन सप्लाई एनीथिंग। ओके, सिसम सीड जाते हैं, कैथेटर्स मतलब ये मेडिकल में आया, अभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड वो भी ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। टर्मरिक एक ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो लोग। फैब्रिक्स में अगर देखते हो तो फैब्रिक ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। और इवन मैं फैब्रिक्स यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन जितना मैंने स्कोप आइडेंटिफाई किया, यार्न लेते हैं वो, फैब्रिक्स लेते हैं, इवन एप्रल्स भी लेते हैं उनके यहाँ पे, वो भी टेक्सटाइल में ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। वैक्सीन फॉर ह्यूमन मेडिसिन बनाने के लिए जो भी लगता है वो भी, अदर कंपाउंडेड प्रोडक्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल्स आल्सो, इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स आल्सो, दे आर लाइक लॉट ऑफ इंपोर्टिंग। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, ये हुआ इंडिया क्या भेजता था, अभी इंडिया से मतलब ईरान से हम क्या लेते हैं? सो इथिलीन पॉलीमर्स, दीज आर द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। क्रूड पेट्रोलियम ये तो इंडिया लेता ही है। अदर नट्स, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईरान कंट्री इज लाइक हायर प्रोडक्शन इन द ड्राई फ्रूट्स, तो वो ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। एक्रेलिक अल्कोहल्स एंड सेमी फिनिश आयरन। और किसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर? चाइना, टर्की, पाकिस्तान को जाता है, यूएई को जाता है, जर्मनी को जाता है। मतलब ये टॉप में दिया है, इंडिया भी इसमें है, लेकिन अदरवाइज ये ट्रेड रूट होता है यूएई से इंडिया, समझा? दिस ट्रेड इज रूटेड फ्रॉम यूएई टू इंडिया, और अदरवाइज जब भी जाता है तो भी रूटेड फ्रॉम यूएई टू, मतलब दुबई से ईरान। तो सोचते समय थोड़ा सा एंगल वाइड करके देखो, सिर्फ एक ही मतलब ऐसे नहीं बस चलो कि सिर्फ यही जाता है तो डायरेक्टली मैं यही भेजूंगा, वाइस वर्सा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इंपोर्ट के मामले में अगर हम देखें तो इंपोर्ट के लिए यस, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, यू कैन इंपोर्ट मेनी मल्टीपल थिंग्स। अगर वो डायरेक्टली इंडिया नहीं आ सकता तो वाया दुबई इंडिया में आ सकता है, दिस वन ऑफ द ऑप्शंस दे हैव ओपन। सो अभी इंडिया इंपोर्ट क्या करता है फिर उनसे, स्पेशली अगर इंडिया की बातें करें तो शेल आलमंड्स, आलमंड बहुत ज्यादा उनके मात्रा में है, मतलब ड्राई फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो दे आर इन द हायर प्रोडक्शन। सो आलमंड आते हैं, पिस्ताचियोज आते हैं, डेट्स हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एप्पल्स हम ज्यादा लाते हैं उनके से, पेट्रोलियम ज्यादा आता है, एंड्रियस अमोनिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट ऑल्सो, मिथानॉल ज्यादा हम लाते हैं,
अल्कोहल में। हाँ यस बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आई थिंक वो हैंग हो गया। मैडम हाँ मैडम बोलो। ओनियन के लिए स्कोप है क्या उधर? ओनियन के लिए स्कोप है उधर? ओनियन ड्रमस्टिक, मला क्वेश्चन नाही कळाला, पुन्हा सांगता? ओनियन किंवा ड्रमस्टिक साठी काही स्कोप आहे का इराणमध्ये? ओनियन आणि ड्रमस्टिक, हो हो. ओनियन एंड ड्रमस्टिक अगर देखूं तो वहां पे क्या है ना कि एक तो डिपेंड रहेगा प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ के ऊपर, दैट इज फर्स्ट। एंड द सेकंड इज अगर उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर क्या आया, अगर कोई भी प्रोडक्ट, सबके लिए बोलूंगी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सोच रहे हो ईरान को एक्सपोर्ट करने के लिए, सो ऑलवेज लाइक 2-3 फैक्टर्स आर देयर। वन इज शेल्फ लाइफ, अगर आप फूड और इसमें जा रहे हैं तो कि शेल्फ लाइफ क्या है उस प्रोडक्ट की, वो ट्रांजिट में कितना रिकवर हो सकता है या ट्रांजिट में कितना सस्टेन हो सकता है, दिस इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज लाइक अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। आप ओनियन भेजना चाहते हो, लेकिन मैंने जो मार्केट उसका मतलब मैं मार्केट में भेजा किया ईरान के, वहां पे जो मैंने देखा उनके पास ऑलरेडी ओनियन अवेलेबल है, मतलब वो खुद प्रोड्यूस करते हैं ओनियन को। जैसे दुबई प्रोड्यूस ही नहीं करता, इसलिए उसको इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, लेकिन ईरान इज एग्रीकल्चर में ईरान ग्रोइंग करता है ओनियन को, तो उनके पास बहुत सारा ओनियन है, इसीलिए शायद वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और तीसरी बात अगर ड्रमस्टिक की देखी जाए तो ड्रमस्टिक कौन ज्यादा यूज करेगा? दुबई में ड्रमस्टिक ज्यादा क्यों लगता है? मतलब दिस इज द लॉजिकल पार्ट, जस्ट आई एम टेलिंग यू फॉर एवरी प्रोडक्ट। दुबई में ज्यादा ड्रमस्टिक क्यों जाता है? क्योंकि दुबई में 40% आर द केरलाइट, बराबर? केरला के लोग दुबई में ज्यादा है। 40% पीपल आर इंडियंस एंड दे आर फ्रॉम द साउथ इंडिया। अभी साउथ इंडिया का ज्यादा मेजर फूड क्या है? इडली सांबार, सांबर. मेदू वड़ा, राइट, हमें बताए। सो दिस इज जस्ट अ बिजनेस स्ट्रेटेजीज हाउ द पीपल आर टारगेटिंग टू एनी मार्केट। अगर उनका फूड प्रिपरेशन ही है कि इडली सांबार उनको ज्यादा लगता है, सांबार में बाय डिफॉल्ट वो मतलब ड्रमस्टिक डालते हैं, शेवगा डाला जाता है। इसीलिए दुबई इंडिया से ज्यादा मात्रा में एयर शिपमेंट हो, सी शिपमेंट हो, दे आर इम्पोर्टिंग ड्रमस्टिक। अगर ये रीजन देखा जाए एंड आई एम कंपेयरिंग विद द ईरान मार्केट, तो ईरान में एक तो केरलाइट ही नहीं है, इंडियन भी नहीं है, राइट? वहां पे इंडियन ही नहीं है, वहां पे जो भी है उनकी कम्युनिटी है, हार्डली होंगे, मतलब निग्लिजिबल। सो अभी उनकी कम्युनिटी अगर देखा जाए तो उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट, उनकी फूड हैबिट्स क्या है फिर? दे आर स्पेशली नॉन वेजिटेरियन, दे पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, टोटली नॉन वेजिटेरियन। सो अभी इस केस में ड्रमस्टिक का यूज उनके लिए है भी नहीं कुछ, समझा? अंडरस्टैंड द स्कोप इन दैट मार्केट। लाइक कोई भी प्रोडक्ट अभी सोचोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पे नहीं जाएगा तो कहाँ पे नहीं जाएगा, वो दूसरे मार्केट को शायद टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इन ऑल एस्पेक्ट अगर बताया आपको, तो अभी आपको क्या समझा कि हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मैंने अभी ब्रेकअप करके बताया, वैसे चेक करो कि हर मार्केट का स्कोप क्या हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। अगर आप फूड में जा रहे हो, अगर आप दूसरे प्रोडक्ट में जा रहे हो, स्टील में जा रहे हो, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, हैंडीक्राफ्ट में जा रहे हो, टेक्सटाइल में जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू हमेशा मार्केट का स्टडी करो, जो जिसको बेचने वाले हो वो क्या है और उसको कैसे चलता है, तब जाके बात हो सकती है। या सैमसंग, आई थिंक यू वांट टू आस्क मी समथिंग। यस मैम, वाया दुबई जब आप रूटिंग करते हो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, जो प्रोडक्ट अलाउड नहीं है सैंक्शंस में, तो उस चीज को कैसा रूटिंग होता है? मतलब ट्रेड कैसा करते हैं हम लोग उनसे? मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसफर कैसा होता है? हेलो हेलो, रिपीट करो। हाँ मैम, मनी ट्रांसफर कैसा होता है और वो सब हम प्रोडक्ट बैंकिंग एंड प्रोसीजर में देखने वाले। शिपमेंट्स कैसे होती है? मतलब इंडिया में से कैसे शिपमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट्स कैसे होंगे? और We will इन see that. फ्यूचर चीज पता चलती है अगर ईरान जाता है या ईरान से आता है तो कोई गवर्नमेंट के इश्यूज हैं उसमें इन फ्यूचर के? आप ट्रेड क्यों कर रहे हो? वो सब हम देखेंगे, डोंट वरी। ओके, स्पाइसेस के लिए वहां पे कैसा है? सॉरी, स्पाइसेस के लिए वहां पे मार्केट? स्पाइसेस, यस। हाँ बहुत बड़ा स्कोप है। अभी मैंने वही दिखाया, स्पाइसेस बहुत बहुत इंपोर्ट करते हैं, उसमें
लेकिन स्पाइसेस में भी ये भी समझ के चलो, अगर इन शॉर्ट जैसे मैंने अभी ड्रमस्टिक का बताया आपको कि ड्रमस्टिक ईरान को नहीं चल सकता क्योंकि वो लोग खाते ही नहीं उसको। राइट, स्पाइसेस में भी समझ के चलो, दे आर नॉट ईटिंग वेरी स्पाइसी। ओके, वो लोग स्पाइसी नहीं खाते, मतलब वो कल्चर ही नहीं उनका स्पाइसी खाने का। मैंने फॉर एग्जांपल अगर बताऊं, मैं यहाँ से पुणे से गई थी तो मैंने बाकरवड़ी लेके गई थी। चितले की बाकरवड़ी यहाँ की फेमस, हाँ पता है किसी को? हाँ हाँ, हाँ, जो मराठी महाराष्ट्र में होगी उनको पता होगा, जो आउट ऑफ है तो उनके लिए मैं कहूंगी कि चितले की बाकरवड़ी, बाकरवड़ी मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द स्नैक्स आल्सो वी कैन से, और यहाँ का महाराष्ट्र का फेमस है वो। ओके, तो वो मैं जस्ट लेके गई थी कि एज अ लाइक इंडियन क्यूजिन होता है ना कि टू गिफ्ट देम या फिर टू गिव देम कि यहाँ का। तो वो बाकरवड़ी अभी जिसने खाई होगी उसको भी पता होगा कि वो कितनी स्पाइसी है, बट इट्स नॉर्मल इन द टेस्ट, राइट। वो खाने के बाद भी उन्होंने मतलब इतना ये किया था कि इट इज सो हॉट एंड सो स्पाइसी, मतलब अभी समझ के चलो कि उनको क्या स्पाइसी लगता होगा, मतलब कितना स्पाइसी खाएंगे। चिली पाउडर का स्कोप ही नहीं है वहां पे। इन शॉर्ट क्या समझा, चिली पाउडर का कोई स्कोप नहीं उस कंट्री में, अब भेज ही नहीं सकते वहां पे। हमारे जैसा स्पाइस तो खा ही नहीं सकते कभी। सो उनको यहाँ पे क्या जाता है, मतलब क्या डालते हैं खाने में, अगर मैंने जितना स्टडी किया वहां पे, टर्मरिक इज द बिगेस्ट सप्लाई फ्रॉम इंडिया। टर्मरिक, लेकिन टर्मरिक पाउडर नहीं, ये भी उसके आगे वाली चीज है। स्टिक्स, दे आर इम्पोर्टिंग टर्मरिक फिंजर्स। वो क्या लेते हैं, टर्मरिक फिंजर्स लेते हैं। इन मराठी अगर मतलब हळकुंड घेतात ते सर, तो मतलब ओके, टर्मरिक पाउडर नहीं लेते। मैंने उनको पूछा भी कि टर्मरिक फिंजर फिर लेके आप क्या करते हो आगे। सो उन्होंने ये बताया मुझे कि लाइक उनका एंड यूज क्या होता है, दे आर लाइक टर्मरिक फिंजर एज इट इज, टर्मरिक फिंजर के पैकेज बना के बेचे जाते हैं। तो जिसको जैसे चाहिए वो वैसे यूज करेगा, इधर घर घर में रिटेल पैक में, और नहीं तो उनके खुद के प्रोसेसिंग यूनिट है पाउडर बनाने की। सो दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम यू रॉ, दे आर मेकिंग द पाउडर एंड दे आर सप्लाइंग इन देयर ब्रांड। तो उनको वो ज्यादा मतलब काम आता है, समझा। सो इसीलिए मतलब अंडरस्टैंड द मार्केट। मतलब स्पाइसेस में क्या आणि होता है, मॅडम स्पाइसेस मध्ये काय काय देतात? सॉरी, हा तेच हाँ तुम्ही बोलताय तेच स्पाइसेस मध्ये काय? हाँ स्पाइसेस मध्येच मी सांगते। टर्मरिक फिंजर ये वन हो गया। सेकंड इज ब्लैक पेपर, वो उनको ज्यादा लगता है। ब्लैक पेपर बताया ना, रेड पेपर ब्लैक पेपर, वो उनको ज्यादा लगता है। मतलब स्पाइसी वो खाते हैं तो ब्लैक पेपर डाल के खाते, लाइक दैट, चिली डाल के नहीं खाएंगे वो, राइट। थर्ड इज सिनेमन, ये प्रोडक्ट ज्यादा जाता है। तो स्पाइसेस में अगर स्पेशली कहूँ तो दीज आर द 3 स्पाइसेस ओनली ईरान इज इंपोर्टिंग इन द मेजर वे। दीज आर द 3, मतलब यू कैन फोकस इन दैट और यू कैन सप्लाई देम। अबाउट क्यूमिन, मैडम लास्ट में क्या बोला आपने? ब्लैक पेपर के बाद? जिंजर, ब्लैक पेपर, सिनेमन। दालचीनी, ओके, cinnamon. सिनेमन म्हणजे Right. वेलदोडे। क्यूमिन एंड सीसम, सिसम जाता है, क्यूमिन ज्यादा नहीं, सिसम सीड ज्यादा जाते हैं। इलायची भी जाता है मैडम मैडम। उसका कुछ इलायची जाता है इसलिए, हाँ कार्डमम एक ज्यादा है। मैडम ये कार्डेमम वगैरह जो रहता है उनका कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है क्या? Cardamom from Iran. From Iran, one of importer is asking me to supply cardamom from 8 कार्डमम days. जाते हैं वहाँ पे, यस, वो ज्यादा स्कोप है वहाँ पे। ओके, सो अभी इंपोर्ट क्या होता है, जैसे हमने देखा यहाँ पे ड्राई फ्रूट से, एप्पल से, पेट्रोलियम, बिटमिन जो मैंने कहा अभी, सो ये बहुत मात्रा में बिटमिन भी इंडिया इंपोर्ट करता है, अमोनिया करता है, मेथेनॉल करता है। ये हुआ प्रोडक्ट के मामले में। सर्विस के अगर देखें हम, कि जिसको सर्विस एक्सपोर्ट में जाना है, सर्विस में भी यस देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, सर्विस इंस्ट्रूमेंट्स में भी एंड प्रॉपर सर्विस में भी स्कोप है। ईरान सर्विस एक्सपोर्ट करता है, मतलब अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एक्सपोर्ट की जाती है, ईरान मतलब एक्सपोर्ट करता है। पर्सनल ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, बिजनेस ट्रैवल, अदर बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस। सो दिस इज द बिगेस्ट, मैं कहूंगी कि इंडिया के लिए बहुत ग्रे एरिया है कि हम इसमें सारे इसमें स्ट्रांग है, राइट? यस और नो? Yes. यस,
ईरान, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है ईरान को? सेम थिंग, हम पर्सनल ट्रैवल भी उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, अदर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, कंप्यूटर, पर्सनल, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे सर्विसेज इंडिया एक्सपोर्ट करता है उनको, एंड दिस इज इन द $1 billion. सो मतलब उस मार्केट को मैं कहूंगी इट इज इन हैविंग द स्कोप फॉर द प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आल्सो, and it is having the scope in the service export also. So both way you can tap that market if you have the scope. Okay. So अभी अगर चलो स्कोप तो देखा, हमें करना भी है तो कैसे आगे जाए. So इसीलिए how to export to Iran. It is about the import and export both, we can say. It is not about the export only, but how to export and how to import from Iran. These are the basic documentations. Only one change than the regular export. सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे बेसिक ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक चेंज है यहाँ पे. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, पैन कार्ड निकालना पड़ेगा, करंट अकाउंट. दिस इज ओनली बिगेस्ट चेंज while exporting and importing from Iran. You need to have account with UCO or IDBI बैंक. बाकी कौन से भी बैंकिंग का अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा. समझा? सिर्फ और सिर्फ यूको एंड आईडीबीआई बैंक, ये दो ही बैंक इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर सकती है. आपका दूसरे किसी बैंक का साथ अकाउंट होगा तो भी वो अलाउड नहीं है. यू कांट डू दैट. मैडम करंट अकाउंट दो बैंक में खोल सकते हैं क्या? या करंट अकाउंट मैडम, ये आपका आवाज क्लियर नहीं था. करंट अकाउंट मैडम, अभी दो बैंक, इट्स करंट अकाउंट, कंपनी का अकाउंट. मैडम हाँ वही मैडम, करंट अकाउंट 2-3 बैंक में खोल सकते हैं क्या? अभी बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं ना. हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, लाइक अभी मेरा अकाउंट एक्सिस में भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है एंड यूको के साथ भी है. ओके ओके मैडम बेटर कौन सा है करंट अकाउंट के लिए? ये एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए बेटर बैंक कौन सा है? एक्सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए बेटर बैंक कौन सा है करंट अकाउंट के लिए? विच बैंक इज बेस्ड, मतलब उसके लिए अभी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. कौन सर्विस सा बैंक बेस्ड ऐसे किसी कोई बोल नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द सर्विस यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट बैंक. तो इसीलिए मैं कहूंगी कि जो बैंक आपको अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, आपके पास जो भी होगी, जो ब्रांच आपको अच्छी लगती है, उसका ब्रांच मैनेजर अच्छा है, सो गो विद दैट बैंक. ओनली प्रीफर नेशनलाइज और प्राइवेट, आइदर और. लेकिन कौन से बैंक अच्छे ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने कहा कि चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन किसी को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया होगा उसके साथ. एसबीआई का एग्जांपल देखो, फ्यू लोग बोलेंगे एसबीआई अच्छी है, नहीं तो सबको पता है ना एसबीआई कैसी है. तो ऐसे हर बैंक के मतलब एक्सपीरियंसेस अलग है, बट डोंट स्टक इन दैट. जो सर्विस अच्छी देती है उसके साथ चलो, कोई इशू नहीं उसका. लेकिन अगर ईरान के साथ चलना है, ओनली यूको एंड आईडीबीआई, IDBI. दो ही बैंक के Okay. साथ आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. ट्रेड करना है तो ये यूको और आईडीबीआई बैंक लगेगा ना. क्या? रुपीज में जब ट्रेड हो रहा है, जो सैंक्शन नहीं है प्रोडक्ट्स इंडिया को जो सप्लाई कर सकता है रुपीज में ट्रेड हो रहा है, इसीलिए सिर्फ यूको एंड आईडीबीआई की अथॉरिटी दी गई है. अदरवाइज ओनली अदर बैंक्स के साथ वो अथॉरिटी नहीं है. if we are exporting or importing via Dubai, then other banks are allowed, I think. Yeah. हाँ, वो मैं ट्रेड बताऊंगी आपको वो कैसे होता है. लेकिन अगर आप इंडिया ईरान डायरेक्ट करने वाले हो, आइदर इंडिया टू ईरान और ईरान टू इंडिया, आइदर और, वो पैसे भी जाने वाला हो, तो यस दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. यूको एंड आईडीबीआई के साथ ही आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. दूसरी बात मैं कहूंगी, अगर आप सच में सीरियस हो, ईरान को सच में ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगी. अकाउंट ओपनिंग के लिए जो भी मैंने यूको बैंक के साथ अभी अकाउंट ओपन हुआ है मेरा, इट विल टेक टाइम. सो अगर आप सीरियस हो तो जितना जल्दी हो सके प्रोसेस को स्टार्ट करो. इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि सिर्फ दो ही, उनके पास स्टाफ बहुत कम है, बोथ आर नेशनलाइज बैंक, इसीलिए आपको पता होगी कि उनकी सर्विस और बाकी सारी चीजें कैसी होगी, राइट. और इसीलिए मैं कहूंगी कि अगर करना हो तो जल्दी चालू करो, क्योंकि दे आर लाइक बैंक अकाउंट ओपन करना इतना टीडियस हो सकता है वो यूके के साथ, मुझे पता चला. नहीं तो बाकी सारे बैंक्स अभी जाओ, उनको मतलब उनको जरूरत है तो वो ही आएंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, वही सारी चीजें करेंगे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, वही सारा अपडेट करेंगे, सब कुछ करते.
यूको के साथ मैंने कितना फॉलो किया होगा अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरी बात, दे आर डूइंग द ऑडिट ऑल्सो। वो आपके एड्रेस जो भी आपने उनको दिया है, रेसिडेंशियल भी लेते हैं, ऑफिस का भी एड्रेस लेते हैं, तो आपकी उनकी ऑफिस की विजिट होती है। द बैंक ऑफिशियल्स आर विजिटिंग टू योर ऑफिस, दे आर सीइंग योर कंपनी सेटअप एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड देन ओनली द अकाउंट विल बी ओपन। मतलब इतना टीडियस है वो। तो इसीलिए होता है, ऐसे नहीं कि होता नहीं है, लेकिन इट इज टेकिंग टाइम, बस मुझे इतना ही कहना है। तो अगर आप सीरियस हो तो जितना जल्दी हो सके उस एक्टिविटी को चालू करो, ठीक है। मॅम पुणे ब्रांच आहे का? क्या क्या? पुण्यामध्ये ब्रांच आहे का तुमची? इको ब्रांच? हा आहे ना, पुण्यामध्ये ब्रांच आहे. पुण्यामध्ये त्यांची ब्रांच पिंपरी चिंचवडला आहे. ओके. आणि आयडीबीआय साठी मेन ब्रांच मुंबईला आहे, पण आयडीबीआय ची जी युनिव्हर्सिटीची जी ब्रांच आहे त्या ब्रांच थ्रू ते ट्रान्झॅक्शन करतात, पण ते इथून तिकडे पाठवतात आणि ती मेन बँक जी आहे ती करते, हा हा. मुंबईची ब्रांच करते. ठीक है. टर्मरिक फिंगर बोला अभी. ओके, बाकी ऑल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम है, मतलब आईईसी, आरसीएमसी, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड वगैरह वो सारा सेम हो गया. जस्ट वन डिफरेंस नाउ. ओके, जस्ट वन डिफरेंस. अभी लाइक फॉर एग्जांपल समझ के चलो कि आप में से कोई ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, ऐसे पकड़ के चलते, या फिर आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो आपने दूसरे बैंक के साथ भी अकाउंट ओपन करके रखा है. टेक इट एग्जाम्पल. ओके, जैसे मेरा अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ भी अकाउंट है और मैंने ईरान के लिए यूको बैंक के साथ भी अकाउंट ओपन किया. ऐसे मेरे 2 बैंक से अभी. ठीक है, अभी जो मेरा नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है वो सारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ रूट होता है. जो भी मैं अभी दुबई को एक्सपोर्ट करती हूँ या अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करती हूँ, आई हैव रूटेड दैट ऑल फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नॉट फ्रॉम यूको. सो ये मेरा रूटीन चलता है. अभी अगर मैंने यूको के साथ भी ओपन किया और ईरान के स्पेशल ट्रेड के लिए, अभी 2 एग्जाम्पल लेके चलो. दिस इज जस्ट आई एम गिविंग इन द डिटेल इंफॉर्मेशन टू यू कि मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है आपकी, और अगर वो गलती हुई तो यू विल नेवर क्लोज द ट्रेड. ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज समझ के चलो कि मैंने एक कंटेनर बनाना का दुबई को भेजा और दूसरी मेरी ऑर्डर आई, एक कंटेनर मुझे अभी ईरान को भेजना है. एक एग्जाम्पल. ठीक है, ईरान को भेजने के लिए मैंने सारी चीजें की, मतलब जो भी रूटीन प्रोसीजर ये वो सारी चीजें की, मैंने कंटेनर पे भेज दिया. डॉक्यूमेंट्स मैंने यूको को सबमिट किए, राइट. पैसे भी यूको बैंक में आए, इसे भी समझ के चलो. पैसे भी मतलब सारा ट्रांजैक्शन क्लोज हुआ, पैसे भी यूको बैंक में आए, बट यूको बैंक वो ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं कर पाएगी. व्हाई? क्योंकि आपने एक गलती की. और कहाँ पे गलती हुई आपकी? जब भी कस्टम क्लियरेंस के समय पे शिपिंग बिल लॉन्च किया गया, पता है ना शिपिंग बिल? जब भी कस्टम क्लियरेंस के समय पे शिपिंग बिल लॉन्च किया गया, तो भी आपका रेगुलर एक्सपोर्ट किस बैंक के साथ था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के. लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ था. तो जो भी आपकी पहली वाली बैंक होगी उसके साथ आपका रेगुलर एक्सपोर्ट है. तो शिपिंग बिल पे जो एडी कोड प्रिंट किया जाता है वो बाय डिफॉल्ट किसका आया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आया, राइट. लेकिन पैसा कौन से बैंक में आया है? यूको बैंक में. तो अभी वो पैसा एक्चुअल किसके पास आना चाहिए था फिर एज पर द एडी कोड? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो यूको बैंक कहेगी कि ये हमारा काम ही नहीं है, आप पहले शिपिंग बिल का एडी कोड चेंज करके लाओ, तब जाके हम ये क्लोज करेंगे. सो इट इज वेरी टीडियस प्रोसीजर. और इसीलिए ईरान के साथ, स्पेशली ईरान के साथ डील करते समय बी केयरफुल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. बी केयरफुल. प्रोसीजरल पार्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में सच में केयरफुल रहना. वो इतना इजी एक्सपोर्ट नहीं है जो दुबई को किया जाता है. उठो और मैडम ये समझ में नहीं आया. हेलो, ये हाँ. एडी कोड कैसे चेंज हो सकता है? हाँ, तो जब भी आप कस्टम क्लियरेंस को, जब भी आपका बनाना का कंटेनर पोर्ट पे जाएगा, यू नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू योर लॉजिस्टिक पर्सन कि ये मेरा यूको बैंक के साथ डील होने वाला है, इसीलिए शिपिंग बिल पे एडी कोड यूको बैंक का आना चाहिए. तो आपको पोर्ट, अभी फिर से रिवर्स में आओ, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यूको बैंक के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, मतलब वो भी रजिस्टर करने पड़ेंगे वहां पे, तब जाके यूको बैंक का एडी कोड वहां पे आएगा. एक्सपोर्ट जितना ओके, ऐसे नहीं है, इसीलिए थोड़ा नॉलेज क्लैरिटी लेके ही आगे चलो. और इसको मैडम ये हाँ बोलो.
मतलब ये अभी मान लीजिए मेरा ऑलरेडी उसी बैंक में एक अकाउंट है, अभी ईरान के लिए स्पेसिफिकली मेरे को यूको या फिर ये आपने जो बोला IDBI बैंक में ही खोलना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली मेरे को ये आईसी में अपडेट भी करना होगा ना? तो DGFT का वो जो ऑनलाइन का वो जो होता है उसमें आपका जो डिटेल्स वगैरह होता है बैंकिंग डिटेल्स, उसमें भी शायद मेरे को वो डालना पड़ेगा ना, या यूको बैंक का वहां भी पे जरूरत पहले नहीं तो है, मान लीजिए। वहां पे जरूरत नहीं है, आईसी में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आईसी सिर्फ एक बैंक आपका दिया तो भी चलेगा, शायद आपके 10 बैंक अकाउंट हो सकते, तो आईसी सिर्फ जो भी आप एक पहली बार अपडेट कर चुके हो दैट इज ओके फॉर आईसी। लेकिन पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहां पे मतलब अगर आप 2 बैंक के साथ अगर पैसे लेने वाले हो तो आपको दोनों बैंक वहां पे अपडेटेड होने जरूरी है। ये थोड़ा मतलब समझा बैंकिंग यहाँ का तक? झमेला है। कौन से पोर्ट पे अपने को ये करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ईरान के लिए? नहीं, पोर्ट कौन सा भी हो सकता है इंडिया का, वो मैंडेटरी नहीं है, वो मतलब वहां पे लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। शायद आप कोकोनट भेजने वाले हो तो आप केरला से भेजोगे, कोचिन से जाएगा वो, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे नॉर्मल एक्सपोर्ट चलता है वैसे ही चलेगा। सिर्फ मैंने जो बताया कि आपको यूको बैंक का रजिस्ट्रेशन भी वहां पे करना पड़ेगा, तब जाके एडी कोड वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, प्रोसीजर में अगर देखा जाए तो यस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो तरीके से प्रोसीजर ईरान के साथ चलती है। वन डायरेक्ट मतलब अभी जो भी हमने डिस्कस की वो सारी डायरेक्ट थी कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, यूको बैंक के साथ अकाउंट भी ओपन किया, ऑर्डर आई, स्टील की ऑर्डर आई, फैब्रिकेशन की ऑर्डर आई, वो मैंने ऑर्डर ली, इंक्वायरी फुलफिल की, कंटेनर लोड किया, वो मैंने भेजा, सेम डॉक्यूमेंट्स यूको बैंक को दिए, पैसा यूको बैंक में आया एंड ट्रेड क्लोज हो गया। गॉट इट? दिस इज द डायरेक्ट वे। कुछ समझा नहीं? एक ट्रेड क्लोज होने में कितना समय लगेगा? तो मैं पेमेंट टर्म्स बताऊंगी। ठीक है, अभी समझा डायरेक्ट ट्रेड कैसे हुआ? ओके, जो सेम हम रूटीन एक्सपोर्ट करते हैं वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है रूटीन एक्सपोर्ट में कि यहाँ पे सिर्फ बैंक स्पेसिफिक है, बाकी सारे रूटीन एक्सपोर्ट में कौन सी भी बैंक हो सकती है, उसमें के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, इजी हो, आप फ्री हो, कुछ भी करो। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि डायरेक्ट ट्रेड में इंडिया ईरान और 2-3 चीजें मतलब ध्यान में रखो। इंडिया ईरान, एक तो यूको और IDBI के साथ ही काम करेगा। सेकंड ट्रेड इंडिया ईरान, कुछ भी इंपोर्ट करो कुछ भी एक्सपोर्ट करो सिर्फ INR में ही ट्रेड किया जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट शुड मेंशन द INR करेंसी ओनली, नो डॉलर, नो यूरो, नथिंग। पैसे INR में आएंगे, जाना है तो भी INR में ही जाएंगे। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट लाइक रेस्ट्रिक्शंस ऑफ दैट। थर्ड फैक्टर, थर्ड रेस्ट्रिक्शन इन दैट ट्रेड कि आपकी जो भी वेसल जाएगी वो डायरेक्टली ही जाएगी। जैसे होता है ना, कभी कभी मैंने दुबई को भेजा, दुबई का डॉक्यूमेंट चेंज करके फिर वहां पे भेजा, तो यूको बैंक विल नेवर एक्सेप्ट दैट, IDBI बैंक विल नेवर एक्सेप्ट दैट। उनके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे कंट्री का नाम, पोर्ट का नाम नहीं आना चाहिए। समझा? जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे उसमें शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ऑफ लोडिंग विल बी नवा शेवा अगर हम महाराष्ट्र से कर रहे तो, एंड पोर्ट ऑफ डिस्पैच विल बी बंदर अब्बास। यही होने चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द मैंडेटरी क्लॉज फॉर देम। ये मैंडेटरी। पोर्ट का नाम क्या बोला आपने ईरान का? बंदर अब्बास। मतलब एक छाबर पोर्ट भी है ना वहाँ पे? छपार पोर्ट है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, वो होगा। मतलब बंदर अब्बास इज रेगुलर रूटीन में चल रहा है, छब्बार का भी काम चल रहा है, तो इट विल बी वेरी सुन, मतलब इट इज कमेंस्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर? डायरेक्ट कैसे होता है? अभी देखे इनडायरेक्ट की बात है। सो डायरेक्ट में अभी क्या है, डायरेक्ट किसके साथ चलेगा? तो जो भी मतलब सैंक्शन में प्रोडक्ट नहीं है, जो फूड है, मेडिसिन है, मेडिकल डिवाइसेस है, जो भी मैंने बोले, जो हमने पहले से डिस्कस किए, वो सारे इसी रूट से कुछ भी भेजो कुछ भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। लेकिन अगर आपको मतलब अदर देन दिस प्रोडक्ट ऑल्सो कोई ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है या फिर इम्पोर्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि यूको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, पैसे तो आ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बोलो कि मुझे स्टिल एक्सपोर्ट करना है तो स्टिल यूको बैंक मतलब इंडिया से डायरेक्टली ईरान को स्टिल नहीं जा सकता। इट इज नॉट ए ह्यूमैनिटरी नीड, वो नीड में नहीं आता ना, इसलिए वो सैंक्शन है तो नहीं जा सकता। आप बोलोगे मुझे
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना है तो नहीं जाएगा, केमिकल एक्सपोर्ट करना है नहीं जाएगा। तो फिर ये कैसे जा सकता है? सो इट इज रूटेड वाया दुबई, होल ट्रेड इज रूटेड वाया दुबई। सो आप दुबई को भेजोगे और दुबई से वो आगे जाके ईरान को जाएगा। बट मेक श्योर उसके आगे भी बहुत सारी, पीछे आगे बहुत सारी बातें हैं ईरान के साथ, और इसीलिए मैंने कहा बी केयरफुल इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजरल पार्ट, इट इज वेरी टीडियस एंड क्रुशियल। क्योंकि अगर एक बार आप फंस गए तो फिर मतलब पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगा। क्योंकि मैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम दुबई से भी रूट करेंगे ट्रेड, तो भी आपके बैंक, अगर मेरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एक्सिस है, HDFC है, ICICI है, बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी बैंक के साथ जाओ, ईरान का नाम भी लोगे ना तो भी वो हाथ ऊपर करेंगे। हमारे बैंक्स अदर देन यूको IDBI, नाम भी लोगे तो भी हाथ ऊपर करेंगे। वो पहले ही बोलेंगे ईरान, मतलब नाम भी मत लो इसका, वो मतलब पहले ही बोलते। और इसीलिए अगर आप किसी भी आपके बैंक के साथ जाके ईरान का नाम मत लेना, नहीं तो पहले डाउट में आ जाओगे आप। ये भी मतलब बात है। तो दूसरी बात, फिर ट्रेड कैसे होता है? इसके लिए आपको जो भी ट्रेड रूट किया जाएगा, आइदर इंपोर्ट आइदर एक्सपोर्ट, आइदर वो पहले दुबई को ही क्लोज करना पड़ेगा पहला ट्रांजैक्शन, और सेकंड ट्रांजैक्शन ओपन होगा फ्रॉम दुबई टू ईरान। समझा? आते समय भी सेम, एक ट्रांजैक्शन दुबई पे क्लोज होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन ओपन होगा दुबई टू इंडिया। तो इसके लिए क्या होगा? एक तो दुबई की कोई तो कंपनी चाहिए, राइट? तब जाके ये ट्रांजैक्शन क्लोज एंड ओपन होगा ना। तो आइदर आपके कस्टमर का कोई रेफरेंस होगा दुबई में, तो वो आइदर वो दुबई के थ्रू आपको रूट करके देगा, आइदर आपका कोई रेफरेंस होगा तो आप उसको बोल सकते हो कि इस कंपनी के नाम से बताओ, वो कंपनी डॉक्यूमेंट वहां पे क्लोज करेगी, दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करेगी और आपको ट्रांजैक्शन करके देगी। सो अभी इसमें दो मतलब मेथड आते हैं। एक किया जाता है क्रॉस स्टफिंग, सेकंड किया जाता है सिर्फ स्विच BL। क्रॉस स्टफिंग का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाना एक्सपोर्ट किया, सो बनाना पहले दुबई को जाएगा, ओके? तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन क्या निकलेगा? पोर्ट ऑफ लोडिंग इज नावा शेवा, पोर्ट ऑफ डिस्पैच इज क्या? जबेल अली। या जबेल अली, पोर्ट ऑफ डिस्पैच भी जबेल अली। तो पहला ट्रांजैक्शन में फ्रॉम इंडिया तो बनाना वहां पे भेजा जाएगा, ठीक है? अभी वहां पे बनाना गया, क्रॉस स्टफिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैंने कंटेनर भेजा था वो वहां पे अनलोड किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, और फिर दूसरा कंटेनर जो बंदर अब्बास को जाने वाला है उसमें लोड किया जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस स्टफिंग। मतलब ये स्टफ किया, अलग निकाल के फिर से लोड किया गया, अनलोडिंग करके फिर से लोडिंग किया गया, तो ये क्रॉस स्टफिंग हो गया। अभी ये क्रॉस स्टफिंग होने के बाद आगे वाली बात क्या है कि एक तो क्रॉस स्टफिंग होगा, फिर बाद में सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो गए, क्योंकि आपने क्या किया, एक ट्रेड जो है वहां पे क्लोज कर दिया है, मेरे पूरे ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो गए। मैंने अगर समझ के चलो कि लाइक नीलेश इज द इंडियन एक्सपोर्टर, आई एम दुबई इंपोर्टर, ओके? और अगर मैं कहूँ कि हर्षद ईरान में बैठा है, तो ऐसे 3 ट्रांजैक्शन चलने वाले यहाँ से। तो अभी नीलेश मुझे भेजेगा, मेरे नाम के डॉक्यूमेंट सारे बनेंगे और यहाँ पे ट्रेड क्लोज किया जाएगा, ठीक है? तो नीलेश के लिए पैसा कौन देगा अभी? दुबई वाला मैडम मैं दूंगी ना उनको, क्योंकि दुबई का मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट आए और मुझे कंटेनर भेजा है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या पता चला कि उन्होंने दुबई को ट्रेड किया है, तो ये ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो गया, राइट? अभी दूसरा ट्रांजैक्शन ओपन किया गया, दुबई की कंपनी ने हर्षद को एक्सपोर्ट किया जो ईरान में है। कुछ तो बताओ, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हाँ समझ रहा है ना? Right. हाँ समझ रहा है। मैडम मैं मैडम इनको एक्सपोर्ट करूंगी ईरान को। अभी मैडम नीलेश के लिए मतलब ट्रांजैक्शन दुबई का ही है, दुबई का एक्सपोर्ट दिखाया जाएगा और दुबई से ही पेमेंट आएगा, तो उसके लिए यूको ID बैंक की जरूरत नाही आहे। It is मॅडम कॉस्टिंग वाढत नाही का मग त्याच्यामुळे? काय म्हणाला? कॉस्टिंग नाही का वाढणार मग? हाँ मग ते तो पार्ट आहेच है ना, आता वो तो बात रहेगी। इसीलिए मैं 2 तरीके बता रही हूँ कि कौन कौन से तरीके से अभी काम चल रहा है, तो हमें कौन सा फिजिबल है अभी हमारे ऊपर आएगा। सो आइदर नहीं तो इंडिया ईरान डायरेक्टली करो, नहीं तो हम यहाँ से रूट कर सकते हैं, दिस इज वन वे। द सेकंड वे वाया दुबई जो रूट किया जाता है उसके लिए ये है कि आप इधर क्रॉस स्टफिंग करके अगर कीमत बढ़ती है या फिर कॉस्टिंग बढ़ता है
तो दूसरा तरीका फिर ये आया कि आप उसको स्विच बीएल करो, तो आपको सिर्फ खर्चा आएगा बीएल स्विच करने का। ओके, आपको सिर्फ बीएल स्विचिंग का खर्चा, मतलब स्टफिंग नहीं किया जाएगा, कंटेनर एज इट इज आगे जाएगा। अच्छा, उसको स्टफ नहीं, क्रॉस स्टफिंग नहीं किया, अनलोडिंग लोडिंग कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्टली Okay. लेकिन वाया रूट किया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो भी निकलेंगे वो पहले दुबई के नाम पे ही निकलेंगे, अच्छा, और दुबई में वो चेंज किए करके सिर्फ बीएल स्विच करके बाकी सारे डॉक्यूमेंट स्विच करके ईरान के नाम से बनेंगे। तो बीएल स्विचिंग मेथड कैसा है मैडम? वहाँ पर एक पार्टी लगेगा बीएल स्विचिंग के लिए दुबई में? हाँ ऑब्वियस है, वही तो मैंने कहा, दुबई के लिए आपको कोई तो लगेगा। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू दैट, क्योंकि दुबई की कंपनी स्विच करेंगी ना। वैसे आप दिखा रहे हो कि मैंने दुबई को ट्रेड किया है और दुबई की कंपनी का मेरा ट्रेड खत्म हो गया, अभी दुबई की कंपनी ने आगे ईरान को भेजा। अच्छा, तो मैडम ये डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा ऑब्वियसली? नहीं दिखेगा, बीएल स्विच जब होगा कि मान लो इंपोर्ट कर बीएल रहे एक हैं। पहला जो बनेगा वो दुबई के नाम पे ही बनाएगा, अच्छा अच्छा, तो दूसरा बनेगा वो दुबई टू ईरान के नाम पे बनेगा। तो वो दुबई वाली पार्टी उधर स्विच कर रही है, ये उसमें शो होगा, तो हमारा कनेक्शन दुबई को स्विच किया जाएगा, राइट। जी, इंडियन कंपनी को कोई शो नहीं होगा। और पेमेंट्स वाया दुबई आएंगे। वाया दुबई गया। जी, जी। और मैडम इन फ्यूचर अगर मान लीजिए ये तो ओपन है कि ऐसा ट्रेड हो रहा है और कई जमाने से हो रहा है सैंक्शन होने के बाद भी, तो इंडियन गवर्नमेंट के कोई इश्यूज हैं क्या इसमें? अगर कुछ होता है मतलब उनको नॉलेज आता है या अभी देखो जनरली अभी मैंने गवर्नमेंट के साथ भी बात की, इवन ईरान में भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी बात की और ईरान गवर्नमेंट के साथ भी बात की, उनके बैंक ऑफिशियल से बातें की, एम्बेसी से बातें की मैंने। तो जनरल है ना कि लाइक कंट्री को तो रिजर्व्स चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, राइट। ये तो अगर मैं अभी मुझे रिकॉर्डिंग बंद करके बोलना पड़ेगा फिर, है ना। सो दिस इज ट्रेड एंड इट इज हैपनिंग। मैडम सबको पता है, सब करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द यूएस। हेलो, अगर हम नहीं जा सकते सो जस्ट बोथ कंट्रीज हैव फाइंड आउट द वे, लेकिन एज पर द रूल दे कांट। समझा मैडम हेलो, एक मिनट सिर्फ मैं एक खत्म करती हूँ। अभी जो भी मैंने एग्जांपल बताया, 4000 कंटेनर राइस के आते हैं और बिटमेन एक्सपोर्ट किया जाता है। वो कैसे आता है? वाया दुबई। बिटमेन वाया दुबई आता है इंडिया में, तो बिटमेन तो आता है ना इंडिया में अभी। ओके, तो सेम वो वैसे ही रूट से आता है और बहुत बड़ा ट्रेड होता है उसका, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा है, पूरे वेसल के वेसल आते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात है, अगर ये ऐसा ट्रेड घुमाना है आपको, तो आपको दुबई में कोई तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए, पार्टनर चाहिए या आइदर पार्टनर चाहिए या फिर आपकी खुद की कंपनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कोई तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो सारी बातें डिपेंड है ना। ऑथेंटिसिटी चाहिए पर्सन की हाँ, दुबई में। मतलब वो ऑथेंटिसिटी, पर्सन की ऑथेंटिसिटी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ है वो दुबई में ही रूट हो रहा है। जी, इंडिया और जी, ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, जो भी है वो दुबई में रूट हो रहा है, पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है, जो भी है दुबई से हो रहा है। अभी एक मेरा दोस्त है कलिकट से, वो ब्रिक इंपोर्ट कर रहा है, मुझे भी ब्रिक इंपोर्ट ही करना है, तो वाया दुबई कर रहे हैं वो लोग। सेम वही तो मैंने बोला, वो ट्रेड ऐसे ही होता है, सेम जो भी हो रहा है वो दुबई से ही हो रहा है। लेकिन वो डिटेल में नहीं बताया कभी उसमें क्या हो रहा है, आपसे पता चला अभी। राइट। सो यू कैन, बट जैसे है ना इफ एंड बट्स, जैसे मैंने बताया, यस पीपल आर इम्पोर्टिंग मोर, एक्सपोर्टिंग मोर वाया दुबई, बट ऐसे है कि दुबई के साथ आपका कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि लोगों को लगता है दुबई फ्रॉड है, दुबई ऐसी है, दुबई वैसी है। जिसको धंधा समझता है उसको समझेगा कि दुबई एक्चुअल सच में कितनी हेल्पफुल है। उनके लिए दुबई है ही नहीं है कि जिनको सिर्फ ओनियन बेचना है, बनाना बेचना है और लॉस होता है, ये होता है, उसके लिए दुबई है ही नहीं है। दुबई इज अ ट्रेडिंग हब। फ्री ट्रेड है ना मैडम वहाँ पे पोर्ट पर? हाँ फ्री ट्रेड है और ट्रेडिंग हब है, पूरी दुनिया का ट्रेड वहां से रूट होता है। एक्सक्यूज मी मैम, बीएल और क्रॉस स्टफिंग में जो एक्सपेंसेस बढ़ते होंगे, क्रॉस बीएल स्टफिंग में में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, स्विच बीएल में नहीं बढ़ते, और जो नहीं भी बढ़ते, बढ़ते हैं तो नॉमिनल है, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं वहां पे, डॉक्यूमेंट चेंज। ओके, बाकी मतलब एक्सचेंज नहीं किया जाता। मैडम एक वन क्वेश्चन, स्विच बीएल जो आपने बोला मैडम, ये जो बिल ऑफ लीडिंग उसमें जो चेंज होगा, लेकिन ये जो ये डॉक्यूमेंट्स में जो ये रिकॉर्ड मैंने एज पर रिकॉर्ड, तो ये मैंने आई हैव ओनली एक्सपोर्टेड टू दुबई ओनली, नो एज पर रिकॉर्ड।
तो नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं पेमेंट समझे। हाँ वो बोलो। जो स्विच बियर जो आपने बोला मीन्स फर्स्ट इट विल बी मैंने एनरोड ये दुबई होके जाएगा ना, पहले इंडिया से दुबई फिर दुबई से हाँ। ईरान। तो में आपने बोला कि स्विच बीएल होगा, बिल ऑफ लेडिंग। तो यस, तो उसमें मैडम ये आपने जैसे कि कहा कि ईरान का नाम लेने से भी वो बाकी सब बैंक जो है वो सब वो ये करता है। तो अभी तो फॉर दैट मैडम वो ये अभी तो ऑन रिकॉर्ड में अगर वो आ गया तब तो मैडम ये उसमें क्या कुछ इश्यूज होगा क्या मैडम स्विच बीएल में? वो तो इश्यूज मैडम तो ये होंगे ना, मैंने वही तो बोला, स्विच बीएल होने के बाद आपका ट्रांजैक्शन वहां पे क्लोज होता है, तो ईरान का नाम आएगा कैसे? हाँ वही मैंने पूछा। तो ईरान का तो नाम आ ही नहीं पेमेंट सकता ना। अच्छा, तो पेमेंट जो दुबई में जो बैठा होगा उसी से पेमेंट मिलेगा क्या मेरे हाँ को ना? ऑब्वियस है, क्योंकि आपका ट्रेड दुबई के साथ ही हुआ है हाँ हाँ ऑन द वर्चुअल वे। फिजिकल ट्रेड तो ईरान को किया आपने, लेकिन वर्चुअली जो दिखा रहे हैं उसका ट्रेड जो है दुबई के साथ हुआ है। हाँ हाँ। तो आई विल बी गेटिंग पेमेंट फ्रॉम दुबई पेमेंट पर्सनल। आपको दुबई से आएगा और वो डॉलर में आएगा। अच्छा। मैडम ये इनडायरेक्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन जो है या स्विच बिल जो है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं आप या और सभी प्रोडक्ट के लिए? सगळ्याच प्रोडक्ट साठी आहे, सर्व प्रोडक्ट साठी ऑल आपण ऑल। डायरेक्ट तिथे नाही करू शकत का? ICS वगैरे जैसे तिथे मैंने डायरेक्ट पहले नाही क्या करू शकत? बताया आपको कि 3 सेक्टर्स को मतलब इंडिया ईरान ने एग्रीमेंट एग्री किया है। 1 इज फूड, 2nd इज मेडिसिन एंड 3rd इज ह्यूमैनिटरी नीड्स। इन 3 सेक्टर में आप डायरेक्टली इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी इंपोर्ट करो, कुछ भी एक्सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। दुबई के साथ जाने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने ओपन किया है आपको। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एनी अदर प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ट्रेड इज रूटेड वाया दुबई, दिस इज 1। ओके लेकिन ओके लेकिन अगर मुझे बनाना भी एक्सपोर्ट करना है, लेकिन अभी का एक इशू उनके साथ चल रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे उनकी सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के साथ उनके पास एक्चुअली अभी INR के शॉर्टेज है, इंडियन रुपीज उनके पास नहीं है। ओके तो अगर हम अभी डायरेक्टली उनको सप्लाई करते हैं सो दे विल गिव यू मनी बट इट विल टेक टाइम। समझा? शॉर्टेज ऑफ करेंसी होने के कारण वो पैसे तो देते हैं, वो डुबाते नहीं पैसे आपके, मतलब सारा सेटलमेंट होता है लेकिन उसको टाइम लगता है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान उनके गवर्नमेंट के पास ही अगर पैसे नहीं है तो दे विल लेंड टेक द लेंडिंग ऑफ द मनी और फिर वो अलोकेशन करेंगे और फिर वो आपको पैसा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि वो अगर 1 महीने में आने वाला हो तो वो 2 महीने लगेंगे पैसे आने। डिले इन द पेमेंट, इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड। पैसे मिलेंगे लेकिन डिले इन द पेमेंट अगर हम डायरेक्टली जाते। तो लोग अभी क्या करते हैं, अगर मुझे इजीली मूव होना है और जल्दी जाना है तो मैंने क्या किया, वाया दुबई रूट किया, क्योंकि उनके पास दिराम है, डॉलर है, यूरो भी है, उनके पास दिराम भी है, यूरो भी है। सो दे आर गिविंग यू डायरेक्टली इन द कैश टू दुबई ऑल्सो। समझा? तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, दे आर प्रिफरिंग दिस वे कि अगर मुझे पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है तो वाई टू लाइक गो विद दैट। सो हम इसके थ्रू जाते हैं। क्लियर? तो मैडम इन केस ऑफ स्विच बीएल मतलब ये यूको बैंक और IDBI बैंक नॉट नेसेसरी, नो आई कैन डू विद अदर बैंक आल्सो इन केस ऑफ स्विच बीएल, क्योंकि ये स्विच दुबई से बीएल, हाँ होके मैंने वही बोला, स्विच बीएल का मतलब समझ के चलो, इट इज रॉकगिल और एक्सपोर्ट टू दुबई। आप दुबई को भेज रहे हो तो उसमें तो मैं किसी भी बैंक के अगर साथ जा सकते हो। मैम आपका जो अभी ईरान विजिट था इंडियन डेलीगेशन के साथ था, तो जो विजिट था ऑफिशियल था, आप डायरेक्टली इंडिया से फ्लाइट लेके ईरान गए थे या वाया दुबई गए थे आप अभी? वाया दुबई डायरेक्ट वाया फ्लाइट दुबई। है, लेकिन जनरली वाया दुबई या वाया कतार जाता है। और स्टाम्पिंग आपके पासपोर्ट पे डायरेक्ट हुआ था? नहीं हुआ, नहीं हुआ, पासपोर्ट पे नहीं, वीजा पर हुआ? किसी के ऊपर नहीं हुआ स्टैंपिंग। और ये एक्चुअली ईरान का अभी का लॉ चेंज हुआ है फॉर द लाइक सेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द लाइक ट्रैवल ट्रेड के लिए, कि उन्होंने अपार्ट फ्रॉम ईरान के जो नेशनलिटीज है उनके लिए स्टैंपिंग बंद किया है। अच्छा, तो अगर मैं वाया दुबई जाता हूँ, अगर मुझे नेक्स्ट मंथ ट्रैवल करना है ईरान,
तो मैं वाया दुबई जाता हूँ तो वो स्टैम्प नहीं करेंगे, सिर्फ अभी वाया दुबई जाते हो तो आई एम नॉट श्योर, दैट आई नीड टू चेक, बट लेकिन आप इंडिया से वहां पे जाते हो तो अभी के लिए तो इंडियंस के लिए तो उन्होंने पासपोर्ट स्टैंपिंग बंद किया है। अच्छा तो मेरी फ्लाइट कैसी थी अभी, मुंबई टू दुबई, दुबई टू यहाँ पे मतलब ईरान, तेहरान। तेहरान पे थी, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी। जी हम यस, दुबई के तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट गए थे? पे फिर से मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ, वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, मतलब एक यस फ्लाइट यस, से हम उतरे और दूसरे फ्लाइट में चढ़े। मतलब डायरेक्ट ही था, मतलब आप हाँ मैंने इंडियन इमिग्रेशन डायरेक्ट के? ऐसे समझ के चलो, हाँ अगर डायरेक्ट। और अगर मुझे जाना है तो मैं पहले दुबई में इंटर करूंगा, दुबई से फिर एग्जिट करूंगा, फिर तेहरान के लिए फ्लाइट लूंगा। दैट यू नीड टू इंश्योर, वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा फिर, वो अगर आप डिटेल्स वैसे करते हो तो। वो डिटेल्स मिल सकती है अगर मैं वाया दुबई जाता हूँ, दुबई में एग्जिट करके, तो वहाँ पे स्टैंपिंग होगा क्या? वही तो मैं कह रही हूँ कि वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर हम क्योंकि इंडिया से डायरेक्टली जा रहे हैं तो अभी के लिए तो मैं फिलहाल बता रही हूँ, जैसे उन्होंने वो क्लॉज मतलब कैंसिल किया है कि इंडियन पासपोर्ट पे तो स्टैंप नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली ट्रेड के लिए किया होगा उन्होंने। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर कोई दुबई से रूट होके आ रहे, लाइक मेरा भी वही मतलब पहले था मकसद कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं दुबई जाने वाली थी, दुबई में मेरा काम था कुछ तो, और फिर वो काम करके आई वांट टू ट्रैवल टू ईरान, ऐसे मैंने प्लान किया था। और अदरवाइज मैं ऐसा उल्टा प्लान कर रही थी कि मैं डायरेक्टली ईरान जाऊंगी और ईरान से फिर आते समय दुबई में रुकूंगी और फिर दुबई से इंडिया आऊंगी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी एक्चुअली कि वो पासपोर्ट स्टैंपिंग का क्या होगा, और इसीलिए मैंने वो अवॉइड किया, मतलब सीधा डायरेक्टली ईरान जाओ, ईरान से वापस आओ, फिर जाके कहाँ पे जाना है वहां पे जाओ। लेकिन जो भी आप कह रहे हो वो मतलब पहले एक बार चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। मैडम अभी जो ईरान का एफएम विजिट है और सैंक्शंस जो कब तक कैंसिल होने के चांसेस है, और ईरान की एफएम विजिट से आप क्या समझती हैं कि बायलैटरल और बढ़ेगा और ये सैंक्शंस जो है वो हटने की उम्मीद एक्चुअली है? मतलब सच में कहूँ तो वो एक्चुअली अनप्रेडिक्टेड है कि बता नहीं सकते, लेकिन जितने मेरी बात हुई गवर्नमेंट से डायरेक्टली, तो उनका तो कहना है कि एटलीस्ट इट विल टेक 1 ईयर, ऐसे हाँ, उन्होंने कहा है। अभी पता नहीं, नॉट श्योर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बीच में, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि यस दे आर विद दैट, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर का जो बेनिफिट है दे आर टेकिंग लाइक दैट। व्हाई? क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर के हिसाब से यूएसए ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाया, बराबर, जो भी हमने न्यूज में सुना कि यूएसए ने रशिया को सैंक्शन लगाए। अभी रशिया को सैंक्शन लगाने से जो भी ऑयल जो जाता है वो तो रशिया से जाता था, जी तो अभी वो तो बंद हो गया सैंक्शन के कारण, तो अभी दूसरी जी कंट्री कौन सी बची? ईरान। इसीलिए हो सकता है पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड कि ईरान के सैंक्शंस हट सकते हैं, तो मान ऐसे लीजिए मतलब चल रहा है उनका। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर स्टैंपिंग होता है मान लीजिए वहाँ दुबई, और इन फ्यूचर सैंक्शंस हटते हैं एक साल You में, अगर can't मैं travel to USA. You cannot travel to USA. You cannot travel to Gulf also. You cannot travel to Saudi also. पीपल्स आर गोइंग टू सऊदी आफ्टर विजिटिंग ईरान। पर स्टैंपिंग लगा तो नहीं कर सकते आप, विदाउट स्टैंप यू कैन। अगर स्टैंपिंग लगा पासपोर्ट को तो यू कैन ट्रेवल। इन गल्फ आल्सो? यस, इवन गल्फ आल्सो, इवन इन दुबई? या दुबई आल्सो। दैट इज व्हाई आई एम स्केर्ड फॉर दैट। इसीलिए तो मैंने मतलब मैं लास्ट ईयर से सोच रही थी ईरान जाने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं थी बिकॉज ऑफ दिस ओनली। या गल्फ भी नहीं, यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं, तो हाँ फिर वही तो, बचा कुछ ही भी कंट्री नहीं बची ना फिर उसके लिए तो जाएंगे कहाँ पे हम? इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो अभी इंडियन गवर्नमेंट का डेलीगेशन है तो उनके साथ चलते हैं, एटलीस्ट वो तो सिक्योरिटी है कि वो पासपोर्ट पर स्टैम्प नहीं होगा। और लेकिन मैंने जो भी मैंने अभी वहां पे एम्बेसी जाने के बाद मुझे पता चला कि पासपोर्ट स्टैंपिंग ना होने के लिए क्या होता है, कि कैसे होता है, जो भी कुछ है। सो यस, फॉर योर रेफरेंस इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू, लाइक आई एम टेकिंग 1 delegation to Iran from India. So if any one of you want to participate in that, you are welcome in that. जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट लेके गया था, वैसे अभी मैं प्लान कर रही हूँ उस गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज आई हैव दैट कनेक्शन देयर, और वो सारा हमने अरेंजमेंट किया है सेम जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, सेम लाइक। वो मोस्टली जुलाई तक होगा। जुलाई नेक्स्ट मंथ? या नेक्स्ट मंथ। ओके, देन आई एम रेडी फॉर इट मैम। तो वो हो सकता है। एम्बेसी से कुछ पता चल सकता है कि जो ईरानियन एम्बेसी इंडिया में होगी वो कुछ बता सकते हैं कि स्टैंपिंग हो रहा है नहीं है? बता सकते हैं, लेकिन अभी श्योरिटी कैसे ले लेना उनकी। जी जी।
और मतलब अगर वो भी आप मतलब जो कुछ issue है। आप जो प्लान कर रही हैं वो डेलीगेशन अलाउड होगा वो ये तो मेरे वहां पे जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, अभी मैं तो उनको पर्सनली मिलके आई हूँ, जी जी तो पर्सनली दे नो मी। सो जब भी कोई बातें मतलब मैं करूंगी पूछूंगी तो अथेंटिसिटी तो उतनी होगी फिर उसकी। ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है तो हमारे राइट, लिए पॉजिटिव बात है वो हम हाँ लोग कर इसीलिए, सकते हैं मतलब एक हाँ दैट इज ऑथेंटिसिटी वाई बढ़ जस्ट गई आई एम प्लानिंग फॉर दैट कि स्कोप बहुत है उस कंट्री में और गवर्नमेंट के साथ हम मिलके मतलब बहुत काम कर सकते हैं। दैट इज वाई जस्ट आई एम प्लानिंग फॉर द डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया टू ईरान। सो बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दैट मच ऑफ स्कोप, सो आई कैन गाइड यू ऑल पीपल कि कहाँ पे ये क्या कैसे कैसे पता हो चलेगा सकता है। मैम कि आप प्लान कर रही हैं जुलाई में क्योंकि आपसे टच में कैसे रह सकते हैं कि आप कब प्लान कर रही हो उसकी डिटेल्स कैसे हाँ मिलेगी ये उसकी डिटेल्स आइदर आपको टीम से भी मिलेगी, नहीं तो सोशल मीडिया पे तो अपडेट आएगा ही उसका। ओके, इनडायरेक्ट ट्रेड पता चला कैसे होता है? Yes. यस नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईरान बैंकिंग, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। यूको बैंक, आईडी बैंक, दिस इज द वन। बैंकिंग कैसे होता है? इनवॉइस विल बी इन INR ओनली। शिपमेंट शुड गो डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया टू ईरान, नो एनी रूट ट्रांजिट एंड वो नहीं चलेगा। नो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज एक्सेप्टेड वाया दुबई, वाया कतार, वाया मतलब ये वाया नो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज एक्सेप्टेड। एक्सपोर्ट पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन INR ओनली। शॉर्टेज ऑफ INR, जैसे मैंने अभी कहा, विद सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान सो डिले इन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। सो जैसे नीलेश जी आपने कहा कि ट्रेड खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो इट विल टेक माइट बी 2 months also, depend on the payment receipt. Okay, so because these are the problems actually they are going on. So यहाँ तक clear? Yes. One question, madam. हाँ बोलिए। जैसे कि आपने बोला कि मैडम टॉप 3 जो है ये एक तो है एग्री, एक मेडिसिन और तीसरा ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, जो कि डायरेक्ट होता है ना आपने बोला। तो बाकी सब में जो ये ट्रेडिंग करते हैं तो वो सब तो ये भाया होके जाएंगे। तो इन दैट केस आपका ये यूको या फिर IDBI बैंक का तो कोई वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है हाँ नहीं शायद है। जो लोग बाकी वो नहीं होने से भी होगा। हाँ राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मार्केट डेवलपमेंट। अगर चलो सच में हमें ईरान में जाना ही है, अभी इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, सो व्हाट इज द मेन थिंग? एक तो मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। सो मार्केट डेवलप कैसे होता है? आइदर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास जाता है, नहीं तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास आता है। दिस इज जस्ट बेसिक रूल, नो इट इज नॉट अबाउट ईरान ओनली, दिस जस्ट आई एम टेलिंग यू फॉर द बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कि आइदर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको इंपोर्टर को ढूंढना पड़ेगा और उसके पास जाना पड़ेगा, नहीं तो इंपोर्टर आपको ढूंढेगा क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट आपसे चाहिए, वैसा वैसा। राइट, तो इसमें आप मुझे बताओ कि ज्यादा फायदेशीर कौन सा होगा? विच वे विल बी मोर बेनिफिशियल? यस